So we were here. Today we are going to learn about what is currency convertibility. And obviously you will easily understand, you can easily guess that this particular question will come to our mind only when our economy is in the process of opening up the current account and the capital account both. Okay. So till now, what we have discussed and the line of thought that we have adopted is based upon a presumption. What was that presumption? That presumption is that whatever comes in and goes through the current account and the capital account, there is no other volatility factor involved. There is no other variable involved. I, as an Indian resident, I will perform certain services, I'll render certain services to the outside world, and the outside world will in turn make certain payments to me. Okay, fine. I will get my remuneration or emolument as the case may be, and then that's it. What we have not understood is what if and what if. Why should I call what if? There will more likely than not, more often than not, there will be a difference between the point of rendering the service and the point of receiving the payment. There may be two different dates, say 21st January or 23rd January maybe. Things like that may happen actually, okay? Or take another example. I entered into a contract with somebody in the outside world, okay? That on so and so date, you please supply me this, and then I will make a payment of $100. This is what I will do. I need product X. You please supply me product X. Just a minute. You please supply me this thing. एक मिनट इसका एक gloves आता है ये मैं देखता हूँ पहन के. If you can solve this problem of palm rejection, then it will be okay. It seems it will work. Okay, हाँ. So this product X is to be supplied by you, and I will make a payment accordingly. So suppose the promised sum from my side was $100. Okay, and suppose for the sake of empirical simplicity, on the date when I promised, that is say 21st January, 21st, the date was 21st. On 21st January, I promised this, that if you supply me X in next 3 days, then on the 4th day, I will make payment of $100. And since we are in current trading terms, so the person is amenable to this particular arrangement. Okay, fine. Now consider the situation that on 21st January, the exchange rate of rupee to dollar was suppose 50. Okay, so since I have promised $100, so today on 21st January, in my mind, what is going on? I have valued this transaction at what amount? Tell me in the chat box. Since today on 20, suppose आज क्या है मुझे तो ये नहीं याद रहता, आज 21 जनवरी ही तो है आज. हाँ, 21 जनवरी को on 21st January, I have placed an order with a foreign firm, promising the firm that I will make a payment of $100 for this particular amount or these particular units of this product. Okay, fine. Today, when the exchange rate is 50 rupees, then I have promised $100. After 3 days, on 24th of January, due to certain factors, volatility, whatnot, the exchange rate actually shifts. And suppose on 24th, he has already supplied it. Now it is my turn to make the payment. On 24th of January, what happens that the rate of exchange between dollar and rupee is 60. Now I have to incur the expenditure of 60 rupees to get $1. You understand my point? समझते रहे ना, बहुत मजेदार चीजें भी बताने जा रहे हैं, आगे बहुत अच्छा लगेगा. एक वर्कशीट खोल लेते हैं आपको ताकि इस एस्पेक्ट को प्रॉपरली समझ लीजिए फॉर एवर.
कभी आपके मन में कंफ्यूजन नहीं रहे, नहीं तो आप इसमें उलझते रहेंगे और कभी क्लैरिटी आती नहीं। हमें नहीं समझ में आता था पहले, फिर इसको बैठ के अच्छे से समझने का कोशिश की, तब जाके सॉरी सॉरी नॉट अंडर दिस सॉफ्टवेयर। हाँ अब ठीक है, ताकि थोड़ा राइटिंग स्पेस मिल जाएगा हमारे को तो अच्छा रहेगा। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, बहुत बढ़िया से समझना। Screen is small actually. Okay, fine. This is 21st January. It is very interesting. Okay, so you will not get bored. Don't worry. And this is 24th January. This is our transaction. This is the line of control से ये हो गया इकोनॉमिक बाउंड्री कह लीजिए, तो कोई बाउंड्री रही नहीं लेकिन फिर भी समझ लीजिए। तो कोई मिस्टर जो समझ लीजिए एक्स हैं जिनसे हमारी डील हो रही है, उनसे बात हो रही है और वो कुछ यूनिट्स जो है वो सप्लाई करेंगे हमको, ठीक है। और उसके बदले हमने यहाँ पर ऑर्डर प्लेस किया और यहाँ पर हमको जो है इस बीच में ये पेमेंट प्रोडक्ट्स रिसीव हो गए एंड ऑन दिस डेट आई हैव टू मेक अ पेमेंट। ओके फाइन। On 21st, the rate was 50 rupees per dollar. Here, the rate is 60 rupees per dollar. So, I had placed an order keeping in mind that my cost for these units, एक ही आइटम समझो खरीदा, उससे क्या फर्क पड़ता है, वन आइटम। जो चीज मैंने ऑर्डर की है, पेन, एक पेन ऑर्डर किया है, इस पेन की कीमत जो है वो 5,000 रुपया थी और मेरे दिमाग में था कि ये 5,000 रुपया मैं डोमेस्टिक मार्केट में जब सेल करने जाऊंगा तो 5,000 रुपया मुझे मिल जाए। जो 5,000 रुपया की मेरी कॉस्ट पड़ी है, इधर 5,000 लिख लो, 5,000 रुपए की कॉस्ट पड़ी है, इसको मैं 6,500 में बेच ले जाऊंगा, 6,500 में बेच ले जाऊंगा। इस प्रकार मुझे 1,500 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। ये मेरे दिमाग में था, क्योंकि भाई इंपोर्टेड पेन है तो हमारा फट से बिक जाएगा, 1,500 रुपीज का मुझे प्रॉफिट हो जाएगा फर्स्ट क्लास। Within the 3-day period, suppose this is all hypothetical, of course, this volume of fluctuation may actually not take place, but for understanding, within 3 days period, what happened, that the balance between dollar and rupee that shifted and dollar appreciated. Okay, so now 60 rupees are required to pay for the same dollars, same $100. So promise तो क्या हुआ, $100 देना है इसको, तो ये $100 कहाँ से आएगा? मैं तो एक सिंपल बिजनेसमैन हूं, मेरे पास फॉरेक्स रिजर्व हो सकता है, नहीं हो, तो व्हाट विल आई डू, आई विल स्पेंड मनी टू परचेज डॉलर्स फ्रॉम समबडी से मार्केट एम मार्केट से मैं ये करके रखूंगा, ये मुझे पैसा देना पड़ेगा और अब मुझे 6,000 रुपया देना पड़ेगा, उसके बदले में $100 मिलेंगे और ये $100 जब मैं पे करूंगा तब मेरी ऑब्लिगेशन, पेमेंट ऑब्लिगेशन मेरा पूरा हो। फाइन, एक सिंपल साइकिल है। Do you now see very clearly that the profitability of business has actually shrunk because of the change in the exchange rate? Earlier, I was contemplating a 1,500 rupees profit, but now it is only कितना रह गया, 500 रुपया रह गया ना खाली, है नहीं? Yes, 500 रुपीज रह गया। कोई लेना देना है इस चीज का बिजनेस से? ये जो प्रॉफिट में कमी आई है, ये कोई लेना देना नहीं है, ये तो एक्सचेंज रेट का गेम है सारा। बिजनेस की प्रोडक्ट की क्वालिटी से इसका कोई लेना देना नहीं, सेल से, डोमेस्टिक सेल जो आपने की उससे कोई लेना देना नहीं, सिंपल सा फ्लक्चुएशन ऑफ द एक्सचेंज रेट में सारा प्रॉफिट इधर से उधर हो गया। ठीक है, ठीक इसी समय पर तुलना कीजिए इस व्यक्ति की। ठीक है, मान लीजिए यह व्यक्ति इनको, हमको तो सप्लाई कर रहा है यूनिट, ये खुद भी ट्रेडर है ना, ये किसी ट्रेडर ही है, तो कुछ इंडिया से एक और दूसरे व्यक्ति हैं, उनका कलर बदल देते हैं, ब्लू कर देते हैं, एक दूसरे व्यक्ति हमारे जैसे एक और, ये है आई और एक है मिस्टर यू से भी इनकी ट्रेडिंग चल रही है, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन यहां पर इक्वेशन उल्टा है। इक्वेशन उल्टा है क्या, कि इन्होंने ऑर्डर प्लेस किया था उल्टा। ठीक, तो इन्होंने ऑर्डर प्लेस किया था दिमाग में रख के कि हमको जो है वो रुपए के टर्म्स में, मान लीजिए ऑर्डर प्लेस किया, एग्जाम्पल ले रहे हैं खाली, ठीक है, रुपए के टर्म्स में सेम ट्रांजैक्शन ऐसा किया कि उन्होंने एक पर्टिकुलर चीज है जो वो सोचा कि जो है हम जो है इनसे ये चीज खरीदेंगे, ये चीज खरीदी गई और इन्होंने प्रॉमिस किया कि हम आपको ये पेमेंट कर देंगे, मान लो कितना रुपया, समझ लो कि 100 रुपया के बात हो, इसको भी सिंपल रखते हैं, 100 रुपीज का बात हुआ। ठीक है,
100 या एक नंबर बताता हूँ, 3 12 12 14 12 36 12 25 60 600 रुपए, 600 रुपीज पेमेंट करूंगा मैं आपको अगर आप मुझे मिस्टर यू अगर विदेशी आदमी को सप्लाई कर दें तो 600 रुपए का जो अच्छा वाला पेन, बहुत महंगा पेन है वो, तो वो सप्लाई कर दें तो 600 रुपया मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, इनका आपस में प्रॉमिस हो गया। ठीक है, अब दिस पर्सन हैज टू स्पेंड डॉलर्स ताकि उसे रुपया मिल जाए। तो अगर डॉलर एप्रिशिएट कर गया है आगे चलकर, और उसका भी कमिटमेंट मान लीजिए इतना ही था, इसी टाइम का था, तो अगर डॉलर एप्रिशिएट कर जाता है आगे चलकर, तो उसे कितने डॉलर खर्च करने पड़ेंगे 600 रुपए इकट्ठा करने के लिए, और यहां कितने करने पड़ते 600 इकट्ठा करने के लिए। दोनों तरफ से आपको समझ लेना जरूरी है ना। $12 लगता कि नहीं लगता पहले केस में, क्योंकि 50 रुपए एक्सचेंज रेट है, तो उसको 600 रुपए में अगर मान लीजिए कि रुपए की भी वैल्यू है भाई, ऐसा नहीं है कि डॉलर में ही डायरेक्ट पेमेंट कर दिया, वो कर दे तो अच्छी बात है, उस तो केस ही नहीं है, और यहाँ पर 10 ही डॉलर उसको लगेगा। आप समझ रहे हैं दोनों स्थितियों में क्या अंतर है। ठीक है, दोनों में अंतर आप समझ गए। तो यहाँ पर जो है अब इस चीज अंदर की बात आप समझ गए, अब अंदर की बात आप समझ गए। अब मजेदार वाला, ये तो तब होता जब दोनों की करेंसी बराबर है भाई, कि हमको आप रुपए में दीजिए, जब आप हमसे डॉलर में एक्सपेक्ट करते हैं तो हमको रुपए में, हम हमारा भी करेंसी का इज्जत रखे। लेकिन ऐसा ये सब सिचुएशन इमोशनल होती नहीं। कुल मिलाकर असलियत में क्या होता है, देखो असलियत में ये होता है कि जब तय होगा तो डॉलर जो है वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड करेंसी है ना भाई, मतलब कायदे से प्रचलित करेंसी है। तो ये जो मिस्टर एक्स हैं, जब ये वाई को यानी यू को जब ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो डॉलर जो है वो मेन करेंसी हो गया ना भाई। इनको डॉलर खर्च करके रुपया खरीद के यू को देने की जरूरत नहीं है, ऐसे नहीं होता है। एक्चुअली क्या होता है सब में, एक्चुअली ये होता है कि ये डॉलर टर्म्स में ही प्रॉमिस करेंगे कि हम आपको $12 देने को तैयार हैं। यही होगा कि नहीं होगा? ध्यान से सुनो हमारी बात को और समझ जाओगे, तुरंत ही समझ जाओगे। उस दिन 21 जनवरी को जब इसने सौदा किया कि हम तुमको दे तो देंगे, सामान तो दे देंगे, लेकिन हमारी भाई कीमत है इतना इतना $12, क्योंकि डॉलर ज्यादा प्रचलित है तो डॉलर के टर्म्स में ही बात हो रहा है। दिक्कत रुपए में आती है, डॉलर में कोई दिक्कत नहीं है। अगर डॉलर में लेन देन होना हो तो कोई परेशानी नहीं होती है, सामने वाला डॉलर में पे कर रहा है। तो यहाँ $12 में तय हो गया, 12 पंचे 60। अगर उसी दिन पेमेंट हो जाता तो इसको कितना मिलता, 600 रुपया। अब देखो मजेदार चीज देखो, 24 तारीख को जब पेमेंट फुलफिल करने का ऑब्लिगेशन आया, तब रुपया कितने का हो चुका, उसको कुछ फर्क नहीं है, इसको कुछ खबर नहीं है। इसकी तो अपनी करेंसी है, ये तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड करेंसी, इसको एक्सचेंज करके थोड़ा देना है। ये तो डायरेक्ट है अपने जेब में से निकाल के डॉलर दिए दे रहा है। समझे कि नहीं समझे? आप समझ गए बात? पहले बताओ कि समझे कि नहीं समझे। वो डॉलर वाला आदमी है, उसको थोड़े रुपए में एक्सचेंज करना है फिर रुपया पे करना, वो तो डॉलर में ही पे कर देगा। उसकी करेंसी जो है वो इंटरनेशनली, जैसे कहते हैं हॉट करेंसी है, अच्छे से चलती है, तो वो तो डॉलर में ही पे करेगा। बहुत अच्छी बात है, डॉलर में ही पे करने दो उसको। तो मान लीजिए 24 तारीख को ये वही $12 जो प्रॉमिस हुआ था, वही $12 ये पे कर देता है। तो 12 छक, अब तो 60 रुपए का हो चुका है। तो इसको कितना मिल गया यू को? बैठे बिठाए, देखो बैठे बिठाए 720 रुपया मिल गया। जो 600 रुपया सोचिस रही अपने दिमाग में, लेकिन मिल गया 720। कितना? 120 रुपए का फायदा हो गया। समझ गए बात को? क्या इसका अर्थ निकाला जाए, इसका अभिप्राय या आशय क्या है प्रैक्टिकल लाइफ के लिए, बिजनेसमैन के लिए क्या आशय है, या किसी कंट्री या इकोनॉमी के लिए क्या आशय है? यू क्या हुआ, एक्सपोर्टर की इंपोर्टर? एक्सपोर्टर ही तो हुआ भाई। इन्होंने ऑर्डर प्लेस किया है और ये इसको जो है सामान सप्लाई कर रहा है, तो एक्सपोर्टर हुआ। तो देखो क्या होता है, अगर अब ये सारी प्रिजम्पशंस पे थी, जितना भी अब एग्जांपल लिया, आप ध्यान से समझो। अगर डॉलर इधर लिख दीजिए और रुपया का निशान यहां बना दीजिए, इनका पारस्परिक संबंध जो है, क्या आप ये एग्री करते हैं कि इनका जो पारस्परिक संबंध है एक्सचेंज रेट के टर्म्स में, डॉलर और रुपया आपस में कैसा बिहेव करते हैं एक दूसरे के प्रति? पेयर कहा जाता है, इसे कहते हैं करेंसी पेयर। ये करेंसी पेयर जो है वो आपस में कैसे बिहेव करता है, कैसे फ्लक्चुएट होता है,
इसका प्रभाव क्या आप मानते हैं कि इंपोर्टर और एक्सपोर्टर दोनों पर पड़ेगा? ये बात सही क्लियर हो गई सबको कि इस प्रकार से इंपोर्टर और एक्सपोर्टर दोनों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। अगर हम सेकंड वाली सिचुएशन जो यहां लिया था एग्जांपल, उसको जारी रखें, दो तीन पॉसिबिलिटी हो गई ना, हमने सब कंसीडर कर लिया। अगर उसको जारी रखिए, पहले सिचुएशन में चलिए। पहली सिचुएशन में क्या हुआ, जो इंपोर्टर था उसके लिए डॉलर में बिल पे करना 24 तारीख को महंगा पड़ गया कि नहीं? क्यों क्यों महंगा पड़ गया? क्योंकि डॉलर बताइए, डॉलर के मुकाबले इस दौरान, ये क्यों इतना रुक रुक के आराम से क्यों बता रहा हूं आपको, चौपट ना कर दो कहीं। बहुत घूमता है दिमाग इसमें लोगों का ना, इसलिए जिन्होंने पहले से अच्छे से बार बार नहीं पढ़ा हुआ। रट तो सब लेते हैं कि एक्सपोर्टर को फायदा, इंपोर्टर को नुकसान और ये सब, लेकिन समझने के लिए इसलिए आराम आराम से बता रहा हूं। तो जो इंपोर्टर है, जिसने मिस्टर एक्स से पहले सिचुएशन नंबर 1, जिसने पैसा मंगवाया था, जिन्होंने जो है वो कहा था कि हमको पेन दे दीजिए, उनको जब 24 को पेमेंट करना पड़ा तब उनकी हालत खराब हो गई, क्योंकि डॉलर तब तक महंगा हो चुका था, यानी द डॉलर appreciated by that time. And since dollar appreciated by that time, it became difficult for the importer to make the payment, and that is why the import was less profitable than anticipated. ठीक बात है। तो अनलेस कोई एक सिचुएशन हो गई। सेकंड सिचुएशन नंबर 2, अनलेस कि सामने वाला डॉलर में ही पेमेंट करने को फ्री कन्वर्टिबिलिटी हो, समझ गए बात, कन्वर्टिबिलिटी फ्री हो एकदम, इंडिया में डॉलर का आवागमन जो है उसमें कोई रोक टोक ना हो, अनलेस ये सिचुएशन अवेलेबल है। ठीक है, अनलेस ये सिचुएशन अवेलेबल हो तो इसका ठीक सिचुएशन नंबर 1 का ठीक पलट दीजिए। 2 में पलट दिया था ना हमने कि जो है यहां पर एक वाई है जो एक्स को सामान सप्लाई करते हैं और उनसे उनको 24 तारीख को पैसा मिलेगा। तो अगर रुपया एप्रिशिएट करता है, अगर रुपया एप्रिशिएट कर जाए, ठीक है, अब उल्टा करिए, उल्टा कर दीजिए ना सिचुएशन को समझने के लिए, तो हम कितने भी पॉसिबिलिटीज निकाल सकते हैं ना। दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू, इट शुड नॉट बी एन इंटेलेक्चुअल चैलेंज फॉर यू। सिंपल, ये लाइन खींच दीजिए इंडिया और यूएस के बीच में, मान लीजिए। अब मान लीजिए रुपया एप्रिशिएट कर गया कि यहाँ 50 रुपए में मिल रहा था और अब रुपया एप्रिशिएट कर गया, डॉलर नहीं रुपया, 40 रुपए की वैल्यू हो गई अब $1 के बराबर। बताओ क्या होगा इसमें? समझ गए? एकदम क्लियर हो जाना चाहिए अब सबको। अब तो सब आपके आंख के सामने है कि यहां पर 50 रुपए का था डॉलर और इन्होंने जो है वह सामान लिया। ये पेमेंट अगर उसी दिन कर देते तो इन भाई साहब को जो है वो 50 रुपए में पड़ता। अगर अभी जो $1 देते तो 50 रुपया मिलता। अब इस तारीख को अगर पेमेंट कर रहे हैं तो वो $1 जब देते हैं, मांगते हैं किसी से, तो वो 40 रुपए का बैठ रहा है। एकदम क्लियर हो गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं रह जानी चाहिए। कुल मिलाकर बात क्या है? द बॉटम लाइन एज इट इज कॉल्ड, व्हाट इज द बॉटम लाइन? दैट एक्सचेंज रेट हैज इट्स डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट सेपरेटली। ओके, इफ, अभी आएगा, अभी एग्जांपल भी आएगा, चिंता न करो। इफ एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, एट द टाइम ऑफ मेकिंग एक्चुअल पेमेंट फ्रॉम इंडियन साइड, लो समझ लो, ये अब्रॉड, at the time of making payment from Indian side, if more rupees have to be spent, मतलब रुपया है depreciated, ज्यादा रुपया खर्च करके तब $1 मिलता है और उसका पेमेंट किया जाता है, तो दिस इज इंक्रीजिंग द इंपोर्ट बिल, इट इज नॉट गुड फॉर द इंपोर्टर। ठीक है, अगर रुपया क्या है कि रुपया कम रुपया खर्च करके ही डॉलर मिल जा रहा है, यानी रुपया एप्रिशिएट कर गया, जो 50 में मिलता था वो अब 40 में ही मिला जा रहा है, रुपया जो है वो एप्रिशिएट कर गया, तो बढ़िया है इंपोर्टर के लिए। कम रुपया खर्च करके उसको डॉलर मिल जा रहा है, पेमेंट कर देगा, सिंपल सी बात है। ठीक पलट दीजिए सिचुएशन को इंडियन साइड में। एक्सपोर्टर का केस देखिए, एक्सपोर्टर को एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द पेमेंट,
इफ रुपी जो है वो अप्रिशिएट कर जाए कि अब एक डॉलर जो है वो 50 रुपए के बराबर है 40 की बजाय, या हमने अपने एग्जांपल में 60 लिया था ना, 50 नॉर्मल समझा था, नीचे गिर जाए तो 40, ऊपर जाना हो तो 60। एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो है 50 रुपीज समझ के इसने जो है किया था कि एक 50 रुपए भी मिल जाएगा तो अपन ठीक है यार चलेगा। और जब पेमेंट रिसीव करने की बात आई तब तक 60 रुपए का वो हो चुका था। तो इन भाई को अब ज्यादा रुपया खरीदना है और डॉलर में उसको कुछ करना है और तब पे करना है, सेम वही सिचुएशन का उल्टा हो गया। तो ये एक्सपोर्टर हुए, ये इंपोर्टर हुए, किसी भी एप्रिसिएशन या डिप्रिसिएशन का इनके ऊपर रिवर्सिबल इफेक्ट होता है। बॉटम लाइन ये है। इस चीज को क्या आप समझ पाए? फ्री एक्सचेंज रेट जिसे कहते हैं, जब मार्केट में एक्सचेंज रेट फ्री होती है और फ्लक्चुएट करती है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है, तब ये एक एडिशनल चुनौती आती है जो हमने इस सिचुएशन में, कौन सी सिचुएशन में? इस सिचुएशन में, ये वाली जो सिचुएशन है अभी तक जितना भी हम समझ रहे थे, इस सिचुएशन में ये देखिए जो हमने सबसे पहला एग्जांपल लिया था, इस सिचुएशन में हमने सिर्फ एक पॉइंट कंसीडर किया था एक्स्ट्रा। वो एक पॉइंट क्या था कि अब मार्केट का साइज बड़ा हो गया है, दैट्स ऑल। द सेकेंड पॉइंट दैट हैज टू बी कंसीडर्ड व्हेन an economy is opened, when economy opens up for the rest of the world, the second thing that has to be considered is fluctuation in exchange rate। या फ्लक्चुएशन क्या लिखना, सीधे एक्सचेंज रेट ही लिख लीजिए ना। एक्सचेंज रेट जो है वो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है जो प्रभावित करती है इस चीज को कि क्या प्रॉफिटेबिलिटी होगी, क्या ट्रांजैक्शन होगा। समझ गया दोनों चीज? अगर ये समझते हो तो अब अगली चीज बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। फिर से आते हैं इस करंट अकाउंट वाले फिगर पे, क्योंकि एक चीज समझानी जरूरी है, नहीं तो आगे गड़बड़ा जाएगा। तो अब हम बेसिक सारे समझ गए इस करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट के। अब जो हम समझने जा रहे हैं वो है एक्सचेंज रेट ओनली इन टर्म्स ऑफ द करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। देखो हमारी बात को समझने का प्रयास करिए आप लोग, सब लोग देखिए, ध्यान सुनिए। हमने जो अभी एग्जांपल लिया है, हाउ दिस विल इफेक्ट द अमेरिकन इंपोर्टर्स एंड ट्रेडर्स। हाँ देखो एक एग्जांपल देख लो भाई, इंपोर्टर्स एंड ट्रेडर्स का है लिख रहा है, नहीं समझा मैं। इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स कहना चाहते हो या ट्रेडर्स? तुम क्लियर कर लो पहले आदित्य। हाँ ठीक है, तब ठीक है, ओके ठीक है। ये कैसे प्रभावित करेगा भाई? अगर रुपया और डॉलर आपस में फ्रीली एक्सचेंजेबल है, ओके, तब अगर कोई रिस्ट्रिक्शन हो तब अलग बात है। अगर फ्रीली एक्सचेंजेबल है यानी कंट्रीज आपस में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाए हैं, अब ग्लोबलाइज हो चुके हैं इकोनॉमी और हमारी करेंसी आपके मार्केट में बिक सकती है, आपकी करेंसी हमारे मार्केट में, यानी सिर्फ इंडिया में ही डॉलर का मार्केट नहीं है, अमेरिका में भी अगर रुपी का मार्केट है। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? तो जो हमने एक बात कही थी बीच में, याद है कि वो तो डॉलर में ही पेमेंट कर देगा, वो तो डॉलर में ही पेमेंट, नहीं तब बात बदल जाएगी। इफ बोथ द करेंसीज आर फ्री फ्लोइंग एंड मिक्सिंग विच ईच अदर, तो जो कंडीशन हमारे ऊपर लागू होगी वही कंडीशन उनके ऊपर। कैसे? मान लीजिए रुपया अप्रिशिएट कर जाए यहां पर, और ये है बाउंड्री लाइन, ये है यूएस मान लीजिए और ये इंडिया है। मान लीजिए रुपया अप्रिशिएट कर जा रहा है, तब क्योंकि फ्री फ्लो है, मार्केट दोनों का फ्री फ्लो है करेंसीज का, तो इनको यूएस वाले जो भाई साहब हैं एक्स जो हैं, इनको जब पेमेंट करना पड़ेगा तब हम रुपया में मांगेंगे। समझ गए बात? अब हम रुपया में मांग सकते हैं फ्री, हमारी भी करेंसी अगर स्ट्रांग इनफ है तो हम मांगेंगे रुपए में कि भाई हमको जो है रुपए के टर्म्स में, आज हमारा आपका डील रुपए में होगा, हम डॉलर में नहीं करें, रुपए में होगा। अगर सिर्फ आपकी ही करेंसी एक्सेप्टेबल है भाई इंटरनेशनली, हमारे करेंसी का कोई औकात ही नहीं, तब अलग बात है। लेकिन अगर आपके यहाँ भी रुपी मार्केट अवेलेबल है, ऑफशोर रुपी मार्केट अवेलेबल है, हमारे यहाँ डॉलर का मार्केट अवेलेबल है, तो हम अपनी अपनी करेंसीज में बात करेंगे ना। फिर तब समझ गए होंगे कि तब क्या इफेक्ट होगा। सिंपल सी बात है कि तब वही चीज हो जाएगी कि एक इस तारीख को इनको कितना डॉलर, सेम टू सेम जो इंडियन के साथ हुआ, उनको उस तारीख को कितने डॉलर खर्च करके रुपया खरीदना पड़ रहा है और पे करना पड़ रहा है, तब वही चीज उनके ऊपर रेसिप्रोकेटेडली लागू होने लगेगी। अंडरस्टैंड? और यही सिचुएशन है अभी, इसीलिए कहा जाता है। तो बताओ ना, एक्सपोर्ट जो है, रुपया एप्रिशिएट होने पे एक्सपोर्ट क्यों सफर करता है? अब समझ जाओगे फट से। देखो ये लाइन है, ये यूएसए है, ये इंडिया है, मान लो रुपया एप्रिशिएट करके, रुपया बहुत मजबूत हो गया, अरे बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो फिर जो बाहर के कंज्यूमर्स हैं, ध्यान से सुनो हमारी बात, जो कंज्यूमर लोग हैं वो इंडियन एक्सपोर्टर को जब पैसा देने के सिचुएशन में आएगा
तो क्योंकि रुपया अप्रिशिएट कर गया है, पहले $2 होते तो $100 फट से अरेंज हो जाता। ध्यान से सुनो हमारे बात, इनके पास $2 होता तो 50 का रेट था ना, हमारे एग्जाम्पल में 50 का रेट था, तो खाली $2 होता तो $100 भर का अरेंज हो जाता और फट से पेमेंट हो जाता। अभी अगर ₹60 हो गया है, सॉरी 40 कहना चाहिए मुझे, ₹40 हो गया है, अप्रिशिएट कर गया ना रुपया, रुपया जो है वो ₹40 हो गया। यही इसीलिए कहता हूं कि बार बार क्यों बता रहा हूं, क्योंकि गड़बड़ा जाता है लोगों का कैलकुलेशन। तो अगर ₹40 हो गया है कि अब $1 में ₹50 नहीं मिलेगा आपको, अब $1 में ₹40 मिलेगा, तो $2.5 खर्च करना पड़ेगा कि नहीं? ये बात समझ गए? इन भाई साहब को $2.5 खर्च करके वही शर्ट लेनी पड़ेगी कि नहीं जो $2 में मिल जा रही थी? यस एग्जैक्टली। तो प्राइस बढ़ गया, चीज का प्राइस बढ़ गया, तो प्राइस जब बहुत बढ़ जाएगा तो उसका असर डिमांड पे पड़ता है कि नहीं पड़ता है? ये रेसिप्रोकली कनेक्टेड है कि नहीं? तो उनको अगर वो जो है वो डिसइंसेंटिवाइज होंगे कि नहीं होंगे? रुपया अगर अप्रिशिएट किया बहुत ज्यादा, तो जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको पैसा देते समय बाहर वाले कंज्यूमर सोचेंगे 2 बार, और इसलिए एग्जैक्टली इसलिए क्या होगा कि जो सामान है वो उतना नहीं बिके, शायद उनको महंगा पड़ेगा, बाहर के कंज्यूमर्स को वही चीज अब महंगी पड़ेगी। इसलिए नहीं कि हमने दाम बढ़ा दिया है, एक्सपोर्ट इंडिया के एक्सपोर्टर ने दाम बढ़ा दिया है, नहीं, इसलिए नहीं, इसलिए क्योंकि एक्सचेंज रेट चेंज हो गई है। दैट इज द ओनली रीजन। तो इफ द रुपी appreciates in comparison to dollar, then higher amount of dollars will be required to pay for the import bill of the consumers. तो ये जो कंज्यूमर्स हैं, बाहर वाले जो कंज्यूमर्स हैं, इनको अपना इंपोर्ट बिल देने के लिए अब अधिक डॉलर खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि रुपया जो है वो स्ट्रांग हो गया है। तो कहते हैं कि रुपया अगर स्ट्रांग हो तो फिर एक्सपोर्टर्स जो है वो सफर करते हैं, इंपोर्टर्स को फायदा होता है, एंड वाइस वर्सा। बताना भाई तुम लोग कि ये ठीक ठाक बात बोले, हम समझ में आया या फिर किसी को कोई कंफ्यूजन है? मुझे तो लगा कि आसान चीज है, इतना बढ़िया से समझ गए हम लोग। अब मैं कोई पॉइंट मिस कर रहा हूं तो भी तुम लोग बता देना, कहीं कोई दिक्कत होगी तो। हाँ हाँ जरूर अंजलि, क्यों नहीं रिपीट कर देंगे, हम बढ़िया से बता के कर देंगे। ये आई रियली अप्रिशिएट दिस, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। फिर से एक बार देखेंगे इस चीज को, क्योंकि हमेशा के लिए क्लियर हो जाए आपका, फिर दोबारा जिंदगी में जरूरत ना पड़े कभी। ये इंडिया है और इस तरफ यूएस बना लीजिए, ठीक है, यूएसए बना लीजिए। अच्छा भाई, 21 तारीख को ₹50 था, 24 तारीख को 40 हो गया। एक एग्जाम्पल लीजिए 40 का, और एक एग्जाम्पल लीजिए 60 का। दोनों एग्जाम्पल कंपेयर कर लो, खत्म काम, हमेशा के लिए छुट्टी। तो मान लीजिए इस तारीख को जो, और यही एक्स है, और दोनों आपस में आदान प्रदान करते हैं। चलो ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, आदान प्रदान दोनों, ये यहां से भी खरीदते हैं और यहाँ को बेचते हैं, दोनों करते हैं, ठीक है। तो भाई इनको कुछ तय हुआ आपस में, तब ₹50 रेट था। 24 तारीख को जब मिस्टर एक्स को पेमेंट मिलना था, मिस्टर एक्स को 24 को जब पेमेंट मिलना था, तब अगर ₹40 है एक्सचेंज रेट, यहां पर वाई लिख लीजिए। मिस्टर एक्स को पेमेंट करने के लिए वाई को कितना रुपया खर्च करना पड़ेगा? $1 से चलिए, खाली वाई को जो चीज वाई ने कंज्यूम करी है, जो वाई ने मंगाई थी, उसके बदले मिस्टर एक्स को पैसा देना है। तो मिस्टर एक्स की तरफ पैसा ऐसे फ्लो होना है, डॉलर जाएगा। तो वाई के पास तो डॉलर है नहीं, हम तो इंडियन लोग हैं भाई, तो ये कहां जाएगा? डॉलर के मार्केट में जाएगा। ऐसे समझो चलो कि हम रुपया देते हैं, तुम हमको डॉलर दे दो ताकि हम इसका पेमेंट कर सकें। सिंपल बात। तो इस दिन अगर ₹40 हो गया, तय हुआ था 50 पे, वो दिमाग में था कि इतना हमारा कॉस्ट लगेगा, ठीक है। लेकिन इस दिन अगर ₹40 रह गया, कि ₹40 में ही $1 मिल जा रहा है, तो वाई का खर्चा कितना हुआ? ओनली ₹40। फाइन। अगर 60 हो गया तो वाई को तो महंगा पड़ गया। अभी वाई के दिमाग में है कि अरे 50 सोचे थे यार, ये तो 40 में मिल गया, तो ₹10 हमको फायदा मिल गया। अगर वही 40 के बजाय 60 हो जाती तो ₹10 नुकसान हो जाता वाई को। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक। ये हो गया वाई को रिसीप्ट, कि भाई सामान आया है और हम पैसा दे रहे हैं। तो इंपोर्ट किया ना वाई ने, इस हमारे इस उदाहरण में इंपोर्ट किया,
तो अगर इंडियन इंपोर्टर है, यानी अभी जो हमने देखा, अगर इंडियन इंपोर्टर है और ₹40 और 60 दोनों में किसमें फायदा है इंपोर्टर को, किसको किसको नुकसान है? फायदा हो वो पहले फिगर लिखिए, नुकसान वाला बाद में फिगर लिखिए चैट बॉक्स में, है ना भाई? हो गया ना, सिंपल सी बात है कि अगर 40 में मिल जाए डॉलर तो फायदा है, 60 में मिले तो फिर 10 रुपए का नुकसान है हमारे दिमाग के हिसाब से, क्योंकि हमने तो कॉस्ट 50 रुपीज सोच रखी थी। यही बात है, सिंपल सी बात है। तो एक इंपोर्टर को रुपए के कमजोर होने पे फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? क्या ये बात मैं सही बोल रहा हूं? अगर इंपोर्टर को फायदा तब है जब रुपया कमजोर पड़ जाए, मारा मारा घूम रहा है रुपया, समझ गए बात? अगर रुपए की वैल्यू बढ़ रही है और रुपया जो है वो गिनती चुनती गिने चुने करेंसीज में आ जा रहा है और कम खर्च हो रहा है, डॉलर के ऊपर शहादत कम हो रही है रुपए की, तो फिर इंपोर्टर को नुकसान है। अगर यह पार्ट आप समझ गए हैं तो इसको ठीक पलट न दें हम, तो एक्सपोर्टर का हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, उसके पीछे लॉजिक दूसरा आ जाता है। कैसे? एक्सपोर्टर वाला लॉजिक ये देख लीजिए, कैसे एक्सपोर्टर को महंगा पड़ता है। वही मिस्टर एक्स हैं, वही वाई हैं, इस बार हम सिचुएशन खाली ये बदल रहे हैं कि इस बार सामान किसने किसको सप्लाई किया है? वाई ने सप्लाई किया है एक्स की कंट्री में, ऐसे वाई ने सप्लाई किया है। जब पेमेंट देने की बारी आई तब अब एक्स को सोचना है ना कि कहां से आएगा बे रुपया, इसको देने के लिए रुपया कहां से आएगा? तो एक्स अपने देश के मनी मार्क उसमें करेंसी मार्केट में जाएगा कि नहीं जाएगा? अपने देश के करेंसी मार्केट में जाएगा और बोलेगा हम डॉलर देते हैं, हमको रुपया दे दो ताकि पेमेंट कर सकें। और उस दिन अगर एक्सचेंज रेट 40 है, अगर एक्सचेंज रेट 40 है तो $1 वो खर्च करेगा तब उसको 40 रुपया मिलेगा, ठीक, और वो पेमेंट करेगा। अगर 50 रुपया उस समय एक्सचेंज रेट है, ठीक है, तो $1 देगा और 50 मिल जाएगा उसको। 60 है तो 60 मिल जाएगा, यही तो हो रहा है। तो अब सोचो इस पॉइंट पे तीनों सिचुएशन सोचो, 40, 50 और 60 रुपए का एक्सचेंज रेट है। जब मिस्टर एक्स इनको पेमेंट करने जा रहे हैं और मार्केट से पैसा डॉलर लेके गए मार्केट से, तो पता चला कि सुनिए ना, आज अगर आप हमको डॉलर देंगे तो हम सिर्फ 40 ही रुपया दे पाएंगे आपको, रुपया जो है मजबूत हो गया है। कह सकते हैं ऐसा? अगर उस दिन एक्सचेंज रेट 40 चल रही है, ताकि कंफ्यूजन हो इसलिए मिटा देता हूं एक बार। हाँ, अगर उस दिन एक्सचेंज रेट 40 है, पहला एग्जांपल, तो जब ये अपना डॉलर लेके जाएंगे तो ये बोलेगा कि हम 40 दे पाएंगे आज, क्योंकि रुपया थोड़ा मजबूत हो गया है। यही तो बात आएगी। तो ये कहेगा कि अरे ये तो महंगा पड़ा ससुर तेरे की, ये तो मतलब ये तो महंगा हो गया प्रोडक्ट हमारे लिए, 40 ही रुपया मिल रहा है। अगर वही $1 में 50 मिलता तब ठीक था, और वही में 60 मिल जाता तब तो हम फायदे में रहते, तो बढ़िया हमने माल खरीद लिया, ठीक है, हमारा कम डॉलर खर्च हो रहा है रुपए के मुकाबले। सिंपल, एकदम सिंपल। तो यही बात है कि एक्सपोर्टर जो है इंडिया का जो एक्सपोर्टर है भाई हमारा, इस एग्जांपल में उसके प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो फॉरेन मार्केट में बढ़ जाएगी, वो महंगा पड़ेगा सामने वाले को अगर हमारा रुपया मजबूत हो गया तो। इसलिए कहा जाता है कि एक्सपोर्ट जो है वो सफर करता है रुपया अप्रिशिएट होने, और ये चैलेंज होता है, इसको कैसे बैलेंस बनाए रखा जाए, कैसे सॉल्व किया जाए। ये बात मुझे लगता है एकदम क्लियर हो गई होगी। तो इसी परिप्रेक्ष्य में अब हम पढ़ रहे हैं कि ये कन्वर्टिबिलिटी का क्या अर्थ है भाई। ये तो जो अभी तक बात हम कर रहे थे वो कन्वर्टिबिलिटी ही तो है, तो ये अलग से इसका टॉपिक बनाने की क्या जरूरत है? मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखिए अभी तक हमने जो भी एग्जांपल लिया है फॉरेन एक्सचेंज के रेट का, सिचुएशन 1, 2, 3, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एक्स और वाई के बीच के जितना भी एग्जांपल लिया है, क्या आपने नोटिस नहीं किया कि ये सारी चीज ट्रेड से रिलेटेड है कहीं ना कहीं, चाहे वो इंपोर्ट हो चाहे एक्सपोर्ट हो। हमने जो एग्जांपल लिया गुड्स का एग्जांपल लिया, ऐसे सर्विसेज का भी हो सकता है, इनमें कोई अंतर नहीं आना है, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, घूम घुमा के दाम तय होता है और एक दूसरे को लोग पेमेंट करते हैं, यही तो हो रहा है ना भाई। कुल मिलाकर अभी तक जो हमने डिस्कशन किया है वो हमने एग्जांपल लिया है करेंट अकाउंट के ट्रांजैक्शंस का, है कि नहीं है? सोच के बताओ। तो अगर जो भी एग्जांपल अभी तक हमने लिया है अगर वो अलाउड हो, सुनते जाइए, सिंपल टर्म्स में सुनते जाइए, जो भी एग्जांपल हमने लिया है वो अगर अलाउड हो, यानी हमारे इंडियन व्यक्ति का, जो इंडियन है
उसको जब पेमेंट करने की बारी आवे तो किसी से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। फ्रीली आप पेमेंट कर सकते हैं। रुपए को डॉलर में बदल दिए, डॉलर को रुपए में बदल लीजिए, आपस में फ्री है। करंट अकाउंट में कोई रोक टोक नहीं है। अगर ऐसा हो कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, देखिए भाई, यानी रेवेन्यू टाइप के आइटम्स इधर उधर हो रहे हैं, ट्रेडिंग वाले टाइप के आइटम्स हो रहे हैं, तो फिर काहे रोका जाए भाई? बेचारा वो तो मेहनत करके बेच रहा है, उसको डॉलर में रुपया मिल जा रहा है, कुछ फायदा हो जा रहा है, तो अपना क्या जाता है? समझ गए बात को? यही मुख्य अंतर है कि करेंट अकाउंट के जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, अगर उनमें करेंसी के कन्वर्टिबिलिटी का कोई रोक टोक नहीं है सरकार की तरफ से, कंप्लीटली अलाउड है, दैट इज कॉल्ड current account convertibility. Very, very simple. But if anybody, Mr. X, having some dollars, if he cannot pass through this barrier automatically, he has to take certain permissions, or he has to follow certain protocols, or there are certain riders, and then only he can come to India through capital account. इधर वाला तो ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, इस पर हमारी ओनरशिप है ना यार। सोच के बताना जो लाइन हम बोल रहे हैं। करंट अकाउंट में जो भी पैसा आया, डॉलर में आया, रुपए में आया, जैसे भी आ रहा, डॉलर में आया मान लो पैसा, जो भी चीज आ रही है उस पर हमारा इख्तियार है ना, हमारी ओनरशिप है। वो वापस करने की क्या लायबिलिटी है, जरा बताना आप लोग। करंट अकाउंट से आया हुआ जो पैसा है उसका यही तो, एक ही तो कैरेक्टर बताए थे आपको कि भाई ये वो पैसा होता है करंट अकाउंट में जिसको वापस करने की कोई लायबिलिटी हमारे सिर पर नहीं होती है। तो करंट अकाउंट से आने वाला पैसा तो हमारा हो गया, उसको वापस करते समय या कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ वैसा हो जाएगा, पता नहीं क्या, एक्सचेंज रेट खत्म, वो सब तो कंसिडरेशन ऑलरेडी हो चुका है। दैट मनी इज अवर्स। इसीलिए धीरे धीरे करके जब इकोनॉमी ओपन हुई, सुना है अब हमारी बात, जब इकोनॉमी ओपन हुई तो धीरे धीरे करके सरकार ने पहले क्या किया, करंट अकाउंट को ओपन किया। और उनमें भी किसको ओपन किया पहले? लाजमी सी बात है, किसको पहले ओपन किएगा? जो इनफ्लो वाला पार्ट है, जो आ रहा है पैसा, उसको धीरे धीरे अलाउ कर दिया कि ठीक है, धीरे धीरे, नहीं तो शॉक लग जाएगा ना। आप समझिए मेरी बात को, क्योंकि अब दोनों इकोनॉमीज इंटीग्रेटेड हैं। अगर दोनों इकोनॉमीज इंटीग्रेटेड है तो दोनों के बीच का एक्सचेंज रेट का, करेंसी का फ्लो है वो ओपन हो जाएगा। करेंसी का फ्लो अगर ओपन हो जाएगा तो उसका डोमेस्टिक मनी सप्लाई पर भी प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम याद है कि अगर कभी इंडियन इकोनॉमी में ऐसा हो जाए कि रुपए के मुकाबले डॉलर बहुत बढ़ जाए, बढ़ता चला जा रहा है रुपए के मुकाबले, अभी एग्जांपल देंगे आपको, चिंता न करिएगा, तो आरबीआई बीच में कूद पड़ता है और एक्सेस डॉलर को सोख लेता है। अभी इतना ही समझो, याद आया? मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए, इसीलिए इसका नाम मार्केट स्टेबलाइजेशन। याद आ गया कि भाई अगर डॉलर एक्सेस हो जाए, रुपया जो है वो कम पड़ने लगे, तो फिर आरबीआई कूद पड़ता है, डॉलर सोख लेता है, और डॉलर सोख लेता है तो बैलेंस फिर से रिस्टोर हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है। याद आ गया? सिंपल सी बात है यार, करेगा ही मनी सप्लाई को भाई स्टेबलाइज करना है तो वही मैं आपसे, वही बात आपसे कहना चाह रहा हूं कि अब तो फ्री फ्लो है, तो उसका तुरंत प्रभाव करेंसी के वैल्यू पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अगर डॉलर हमारे यहाँ इंडिया में, बहुत सिंपल सी बात है कि टोटल, देखो ध्यान से सुनना इस वाले एग्जाम्पल को, ये इंडिया है इस तरफ और ये यूएस है, और अब तो फ्री फ्लो अलाउड है भाई, फ्री फ्लो है। तो किसी टाइम ऐसा हो जाए कि रुपया है 2 और डॉलर हो जाए 3, तो आपको हमने बताया था कि क्योंकि करेंसी भी, हम लोग करेंसी के लिए एक मेंटल ब्लॉक बनाए हुए हैं कि रुपया कोई चीज नहीं है, रुपये से तो चीज खरीदी जाती है ना। नहीं, यही यही आपका वो हमको तोड़ना है। साफ साफ करके बता देता हूं ना, कभी जो लोग नए हैं वो कभी समझ नहीं पाएंगे। देखो मैं बनाता हूं आपके लिए, और ध्यान से समझिएगा। ये इंडिया और एक तरफ यूएस बना देते हैं। कभी ऐसा हो जाए दोस्तों, सॉरी, अब हम लोग ज्योग्राफी के हिसाब से भी करेक्ट रहेंगे भाई थोड़ा, है नहीं? यूएसए इधर है, इंडिया इधर बनाओ, ठीक है। तो यूएस से डॉलर आ सकता है और रुपया इधर से उधर हो सकता है, ठीक। ज्यादातर क्या होगा, डॉलर ही आएगा भाई, डॉलर जो है वो आता है इधर, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड करेंसी है, ज्यादा वो एक्सेप्टेबल है। तो एक समय ऐसा आया, मान लो कि डॉलर का एक्सेस हो गया रुपये के मुकाबले, और रुपया मान लो 3 है, तो आप क्या नहीं जानते कि अगर ये कोई चीज होती, मान लो ये आम और केला है, ठीक है, ये केला है और ये आम है, ठीक,
इसको इसको मैंगो कह लो, इसको बनाना कह लो। और मान लो बार्टर हो रहा है, बार्टर। तो जे मारा मारा घूम रहा है, खूब सारा पड़ा हुआ है, और जो कम है, जिसकी जिसका जो है क्वांटिटी कम है, सप्लाई कम है, सप्लाई समझ लो कम है, और इसकी सप्लाई ज्यादा है, इसकी कम है। तो क्या यह समझ वाली बात नहीं है कि कम आम के बदले ज्यादा केला है? तो अगर कोई बार्टर करने पे आवेगा तो एक आम देगा तो उसको एक से ज्यादा केला मिलेगा, क्या इसमें कोई दो राय है आपको? समझ गए बात? एक तरह से, या बढ़ा लो इसको, 6 कर लो तो तुम समझ जाओगे। डॉलरवा को 6 कर दो 3 के बदले। अब समझे कि ₹1 और $2, $2 अब हो गया कि नहीं? तो एक आम, इससे हमको अपने बचपन की एक भयावह तस्वीर याद आती है, बताता हूँ रुक जाओ। और दो बनाना, भयावह तस्वीर ये है, एक सवाल आता था, कुछ आम केले हैं, कुछ बकरियां बस हैं, इस टाइप का सवाल आता था, एकदम दिमाग एकदम वो घुमा देता था। रीजनिंग उसको बोलते थे, पता नहीं कौन वो रीजनिंग कहाँ काम आती है भैया, हमें जिंदगी में तो अभी तक नहीं काम आया, कोई बात नहीं। ठीक है भाई, तो एक मैंगो और 2 बनाना बराबर। इसी प्रकार अब देखो इस डॉलर के, अरे नहीं नहीं, काम तो आती ही है, बिल्कुल आती है, मजाक नहीं, कोई भी स्वीपिंग स्टेटमेंट्स मैं नहीं करता हूँ इस तरह के, कैजुअल टॉक, मजाक कर रहे थे खाली। ठीक है, ये जो आर है वो 1 है और उसके बदले $2 है, 1:2 का जैसा रिलेशनशिप है। तो जिसकी मात्रा कम होगी, जिसकी आपूर्ति कम होगी, आपूर्ति यानी सप्लाई कम होगी, तो उस पर लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई क्या है, उसकी प्राइस क्या हो जाएगी? बताओ तो तीर बनाए। वैल्यू मोर होगी ना उसकी, जिसकी सिंपल सा लाइफ में भी यही लगता है, दिन भर घुसे रहो किसी के यहाँ साले को तो तुम्हारी इज्जत ही नहीं रहेगा कुछ। होता नहीं, ससुराल बहुत बार जाओ, ससुराल तो इसलिए मैं बहुत कम जाता हूँ। ठीक है, तो ये आपूर्ति जो है, आपूर्ति अगर किसी की जो है वो ज्यादा होगी बहुत, जैसे कि डॉलर की है इस केस में, तो उसकी प्राइस जो है वो गिर जाएगी एक तरह से। तो इन दोनों का आपस में अगर ऐसे ही कंपैरिजन कर लीजिए, तो इन अ सिचुएशन वेयर, in a situation where dollar is in excess supply than rupee, the inevitable consequence will be what? Rupee will appreciate in comparison to the dollar. Is that acceptable to you? रुपया क्योंकि कम है इसलिए उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और डॉलर जो है क्योंकि ज्यादा है, डबल बना दीजिए इसको, तो उसकी वैल्यू जो है वो इसके आपस में तुलना में, बस ऑब्वियसली हम लोग एक्सचेंज रेट की बात कर रहे हैं तो तुलना में बात कर रहे हैं, वैल्यू की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो रुपए की वैल्यू बढ़ जाए तो इसमें हमें क्या नुकसान है, बताओ जरा? तो हमें तो बहुत खुशी की बात है। इसमें बोल रहे हैं कि आरबीआई को उतर जाना चाहिए और एक जो एक्सेस डॉलर है उसको सोख लेना चाहिए ताकि 1:1 हो जाए और हिसाब बराबर संतुलित हो जाए। अरे हमें क्यों संतुलित करना है, ये तो बहुत अच्छी बात है, बताओ जरा, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। रुपए का अप्रिशिएट होना हमारे लिए अच्छी बात है कि नहीं अच्छी बात है? हमेशा रही तो रोना पीटते रहते हैं हम कि रुपया फिर से गिर गया, रुपया फिर से गिर गया। बताओ, आई एम वेटिंग फॉर अ कमेंट कि फिर क्या है आरबीआई को जरूरत है उसमें कूद पड़ने की। अरे अभी तो बताए थे, रुपया अप्रिशिएट होगा तो किसका नुकसान होगा? तय कर लो भाई तुम लोग अभी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों लिख रहे हो कमेंट, इसका मतलब इतना बताने के बाद भी नहीं क्लियर है, बट इट्स ओके, ये होता है कंफ्यूजन। आप शांति से क्लास के बाद एक बार और सोचिएगा। आप एक ही एग्जाम्पल याद रखिए बस, ठीक है, एक का एग्जाम्पल याद रखना कि अगर रुपया बहुत महंगा हो गया, अगर रुपया बहुत महंगा हो गया तो सामने वाले की हालत खराब हो जाएगी, बस इतना याद रखो तुम खाली, बस ठीक है, इतना याद रख लोगे कि अगर हमारा रुपया अच्छा होगा, अगर अप्रिशिएट हो गया तो सामने वाले की हालत खराब हो जाएगी, तो सामने वाले की हालत खराब हो जाएगी तो खरीद पाएगा हमारा सामान। बस, मैं जनरली ट्रिक्स में यकीन नहीं रखता हूं, आई डू नॉट लाइक मेमोरी ट्रिक्स, आई बिलीव इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। लेकिन फिर भी चलो, तुम भी क्या याद रखोगे, वो बस में नहीं आता था, रोडवेज बस वाले जानते होंगे। वैसे तो ये कंपनी का प्रचार है, इसीलिए जो है वो कंघी एक ही है, लेकिन इसके साथ ये वाली कंघी और ये वाली कंघी और ये वाली कंघी, ये सब कंपनी के प्रचार में फ्री है। तो इसलिए वो भी बताया दे रहा हूँ आपको, आई डू नॉट सब्सक्राइब टू दिस व्यू कि जो है ट्रिक्स है और निमोनिक्स और ये सब बना के याद करने चाहिए, कॉन्सेप्ट फैक्ट तक ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट है। समझ गए, रुपया अप्रिशिएट करेगा तो एक्सपोर्टर्स का क्या होगा? ठीक है, फाइन, अब आप समझ गए। तो इसलिए मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए जब आरबीआई को उतरना पड़ता है
तो अब ये भी याद होगा, चलो आगे बताएंगे अभी, लेकिन आगे शायद इसमें नहीं आएगा। तो अब एक छोटी सी ये भी समझ लो कि अभी यूएस और इंडिया बनाए थे, जो ये यूएसए और ये इंडिया, ठीक है, और आरबीआई इंडिया में ही है। तो जो एक्स्ट्रा डॉलर है आया है बाहर से, $1 पहले से रहा मान लो, और ₹1 भी पहले से रहा। ये एक्स्ट्रा डॉलर आ जाने की वजह से दो हुए जा रहे थे, तो रुपया अप्रिशिएट कर जा रहा था। यहां तक समझ गए? तो हम कह रहे हैं भाई कि जो आरबीआई का इंस्टीट्यूशन है, फटाफट हमको चेंज करना चाहिए कलर में, भी थोड़ा धिम्मड़ हो गया। आरबीआई का ये है। अब आरबीआई का काम हम कह रहे हैं कि आप ये एक्स्ट्रा डॉलर सोख लीजिए। अरे मेरे भाई, अगर एक्स्ट्रा डॉलर सोख लोगे तो फ्री में थोड़ा है, वो ऐसे थोड़े घूम रहा है कि जो चाहे वो हड़प ले जाके सोख लेगा। ने का क्या मतलब है? यू विल हैव टू पे फॉर इट ना, इट्स एन ओपन मार्केट नाउ, सो यू विल हैव टू पे फॉर द डॉलर, इजंट इट? सो यू विल पे फॉर द डॉलर इन टर्म्स ऑफ व्हाट? रुपया। तो अब रुपया नहीं ज्यादा हो गया, इसको सोखे आप तो रुपया नहीं ज्यादा हो गया, तो इसका सप्लाई बढ़ गया कि नहीं? नहीं, अब रुपए का सप्लाई बढ़ गया, तो ये इसका क्या फायदा हुआ? ये तो पूरा बोगस हो गया, पूरा गेम ही खत्म हो गया हमारा। तो इसमें कहां स्टेबलाइजेशन हुआ? यू जस्ट सब्स्टिट्यूटेड वन काइंड ऑफ इंस्टेबिलिटी विद अनदर। समझ में आ गई बात? ठीक है। इसलिए आरबीआई क्या करता है कि हम डॉलर सोखेंगे तो जरूर, लेकिन उसके बदले रुपया रिलीज नहीं करेंगे मार्केट में। नो नो नो, आई विल नॉट डू इट। याद करो, याद करो चिरकुटों। हाँ, सेजल को याद आ गया, बिल्कुल सही बात। हम उसके बदले में क्या देंगे? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचेंगे। कि गवर्नमेंट सिक्योर मार्केट है, मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज चलती हैं, सबसे ज्यादा वैल्यूएबल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ही होते हैं ना। हम पैसा नहीं देंगे तुमको, सामान दे देंगे, उसके बदले में हमको डॉलर दे दो। अगर हमने रुपया दे दिया तो फिर वापस प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएगी, उल्टा प्रॉब्लम चालू हो जाएगी। इसलिए रुपए की डोमेस्टिक सप्लाई को डिस्टर्ब किए बिना अगर डॉलर को सोखना है तो उसके बदले रुपए का पेमेंट ना कीजिए। किसका पेमेंट कर दीजिए? जीसेक बोलते हैं जिसे, जीसेक, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का आप गिरवी रख दीजिए, गिरवी रख दीजिए या बेच दीजिए, जैसा आपको करना हो, और उसके बदले में डॉलर को सोख लीजिए। याद आया? इसलिए इसको मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम या एमएसएस कहते हैं, जो आरबीआई करता है। तो लेकिन ये तो महंगा पड़ेगा ना, समझे बात को? अब सारा चीज जोड़ो, जो अभी तक पढ़े उसको जोड़ो। इसमें ये कोई फायदे का सौदा है क्या आरबीआई के लिए? बताओ जरा, क्या ये फायदे का सौदा है? आखिर कोई आपसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्यों खरीदेगा और डॉलर दे देगा ऐसे ही? है क्यों दे देगा? उसको फायदा हो रहा होगा ना सामने वाले को। आपके टर्म्स ऑफ ट्रेड ऐसे होंगे, आपने ऐसा तय किया होगा कि भैया तुमको हम, ये ₹100 का है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इसकी वैल्यू ₹100 है, लेकिन हम तुमको 90 में दे रहे हैं, लाओ ये डॉलर दे दो हमको। तब लेगा ना वो, ऐसे थोड़े ले लेगा। तो ये जो कन्वर्जन, ये जो हो रहा है स्टेबलाइजेशन, इसकी अपनी एक कीमत होगी ना, इसकी कुछ कॉस्ट होगी जो अंदर छिपी हुई होगी। हायर इंटरेस्ट रेट, डिस्काउंट, कुछ ना कुछ होगा उसमें, तभी तो वो फायदेमंद है, तभी तो लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वरना काहे लेगा कोई? तो स्टेबलाइजेशन की कॉस्ट पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो ये हम तो कह रहे थे कि आरबीआई जो है बड़ा फायदे में रहता है, और डिविडेंड, आदित्य उस दिन बता रहा था कि डिविडेंड पे करता है आरबीआई। तो ऐसे घाटे सौदा करता रहेगा तो कहां से चलेगा आरबीआई, कहां से प्रॉफिट में आएगा जी? इसीलिए अगर मुझे ध्यान से याद है, देखो भाई मेमोरी का चीज में मैं कभी ताल नहीं ठोकता हूँ, भूल जाऊं अलग बात है, लेकिन आपको अगर याद होगा तो ये जो कॉस्ट है वो गवर्नमेंट बियर करती है। इसीलिए याद आया, आरबीआई और गवर्नमेंट के बीच में यही एग्रीमेंट है कि आप मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम लगाइए, इसका जो कॉस्ट होगा वो आप खाली हमारी मदद कर दो, कॉस्ट हम बियर कर लेंगे। क्या मैं सही बोल रहा हूँ या भूल गया? मैं भी बहुत समय हो गया पढ़े हुए, उसको देख लेना, चेक कर लेना, मेरे हिसाब से ऐसा ही है। ठीक है, पूरा 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 गेम समझ गए ना आप? आप वापस आ जाओ। अब अगर गेम समझ गए हो तो अब वापस इस पे आते हैं, इसी वाली चीज पे अपने, कि जो बाहर से करेंसी और इसका एक्सचेंज अब फ्री फ्लो हो गया है, इस तरह से फ्री फ्लो हो गया है, वो फ्री फ्लो किस तरह के ट्रांजैक्शंस के लिए अलाउड है हमारी इंडियन इकोनॉमी में? तो 1991 में जब सब शुरू हुआ, तब से गेम धीरे 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 चेंज किया जा रहा है। याद रखना इस चीज को, ठीक है? एकदम से नहीं, धीरे धीरे धीरे। सबसे पहले जो आने वाला पैसा है उसको फ्रीली अलाउ किया गया, फिर कुछ जाने वाले पैसे को भी फ्रीली अलाउ किया गया, फिर इस अकाउंट में, करंट अकाउंट में आने वाला भी पैसा और जाने वाला भी पैसा, दोनों को फ्रीली अलाउ कर दिया गया। तो आज की तारीख में हम क्या कह सकते हैं कि इंडिया में
rupee is freely convertible so long as current account is rupee और डॉलर या कोई और भी करेंसी हो, जो भी करेंसी हो। हमारी डोमेस्टिक करेंसी, ऐसा कर लो, डोमेस्टिक करेंसी और फॉरेन करेंसी आपस में फ्रीली कन्वर्टेबल है सो फार एज करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस आर कंसर्न। बट कैपिटल अकाउंट में धीरे धीरे रिस्ट्रिक्शंस को लिफ्ट किया जा रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों बताओ? क्योंकि जैसे ही इस पॉइंट को कन्वर्टेबल बना देंगे फ्रीली, ध्यान से सुनो, वैसे ही जिस स्पीड से यहां ट्रांजैक्शन होते हैं, अभी तो किसी से कुछ पूछना जांचना नहीं है ना, है पैसा डाला, इसने इसको पेमेंट किया, इसने इसको पेमेंट किया, इसने इसको पेमेंट किया, समझ गए बात? कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन अगर यही चीज कैपिटल अकाउंट में हो जाएगी तो आज पैसा लगाया कल लेके निकल गया, आज पैसा लगाया कल लेके कन्वर्ट करके निकल गया, तो कैपिटल अकाउंट में वोलेटिलिटी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? बताओ, कैपिटल अकाउंट भी वोलेटाइल हो जाएगा कि नहीं? और इसमें किस तरह का पैसा आता है, यह बताए जो इस वाले अकाउंट में किस तरह का पैसा आता है? हमारा पैसा होता है वो, हम उसको हमेशा के लिए रख सकते हैं। बहुत खुशी होगी अगर एफडीआई के रूप में आए, तो हम समझो बहुत खुश हैं कि कम से कम एकदम से लेके भाग नहीं जाएगा। कल बात किए थे ना, याद है कि एफडीआई हो तो कम से कम लेके भागेगा नहीं। एफपीआई हुआ, बोरोइंग्स हुई, इसी तरह का सब चीज आता है ना। तो कैपिटल अकाउंट को अगर फ्रीली कन्वर्टेबल कर दिया जाए, खुल्लम खुल्ला छोड़ दिया जाए, तो एक रिस्क रहेगा। वो रिस्क क्या कहलाता है? पलायन, पूंजी का पलायन हो जाएगा। कैपिटल फ्लाइट का रिस्क रहेगा कि लेके भाग लिया, जब मर्जी आए तब लेके सट से निकल लिए सब, समझ गए बात? और यह पलायन किन कारणों से हो सकता है? छोटी सी अफवाह से भी हो सकता है यह पलायन, ठीक है कि नहीं है? ऐसा जो आप ईस्ट एशियन क्राइसिस सुनते हैं, ईस्ट एशियन क्राइसिस क्या हुआ था? उसमें एक कंट्री से शुरू हुआ था ना मैटर, खाली थाईलैंड को दिक्कत आई थी ना, उनको अपना फिर जो है फ्रीली कन्वर्टेबल सब करना पड़ा। तो थाईलैंड की दिक्कत आई थी ना, फटाफट फटाफट मलेशिया, सिंगापुर सब जगह हो गया कि नहीं हो गया तुरंत? इसको क्या कहते हैं? कॉन्टेजियन, समझे कि संक्रामण, संक्रमण, संक्रमण हो जाएगा। एक से न्यूज सब भागेगा लेकर पैसा, छोटी सी न्यूज इधर से उधर हुई, सारा एफआईआई लोग पैसा विड्रॉ करके भाग लिया सब। यही चीज शॉर्ट टर्म डेट्स में भी होगी कि नहीं होगी? शॉर्ट टर्म डेट्स वाली जो पैसा है वो, तो उसको आप रिन्यू कराना चाहें कि इसको लॉन्ग टर्म कर दीजिए या इसको और बाद पे कर देंगे, कुछ नहीं। जिसको जहां पैसा, जितने भी आपको बोरोइंग वाले हैं, कैपिटल लगाने वाले लोग हैं, उनको जहां सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा वो वहां पैसा लगाएंगे, और तुरंत आपके यहाँ से कैपिटल जो है विड्रॉ कर ली जाएगी, दूसरी जगह लगा दी जाएगी, विच यू मे नॉट बी एबल टू अफोर्ड एक्चुअली। अगर आपका डोमेस्टिक सेक्टर स्ट्रांग नहीं है और आप हैवी डिपेंडेंस रखते हैं फॉरेन कैपिटल पे, तो आपकी हालत खराब हो जाएगी, फिर दिक्कत आएगी आपको। इज दैट अंडरस्टूड? इसीलिए धीरे 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 करके कैपिटल अकाउंट को जो भी कन्वर्टेबल किया जा रहा है। तो अब समझे क्या ये कन्वर्टेबिलिटी क्या होती है? अब सब समझ में आ जाएगा, देखते जाओ, जो लाइन लिखी है सब समझ में आ जाएगा। अब सिर्फ लाइन पढ़ेंगे और आपका क्लास खत्म हो जाएगा फटाफट। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, द फ्रीडम ऑफ इंटरचेंज, करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी तो आप समझ ही गए, इसमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ टर्म्स हैं, ऐसा ना हो कि आप बाद में अपने आप पढ़ना चाहें और समझ ना आए, तो वो बता देते हैं। पेमेंट्स इन कनेक्शन विद फॉरेन ट्रेड, अदर करंट बिजनेस सर्विसेज, नॉर्मल शॉर्ट टर्म बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटीज। ये शॉर्ट टर्म बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटीज पे क्वेश्चन उठना चाहिए कि सर आप तो बताए थे कि जो क्रेडिट वाला होता है, उधारी उधारी का काम जो है वो तो कैपिटल अकाउंट में होता है, ये फिर यहां क्रेडिट शब्द क्यों आ रहा है? ये तो इनकम के लिए होता है करंट अकाउंट। तो इसी इनकम, यही जो ट्रेडिंग हो रही है दोस्तों, ट्रेड हो रही है, और मान लो देखो ये है यूएस और ये है इंडिया, मान लो, ठीक है, अभी समझा देते हैं। तो जो बैंक्स होते हैं ना, बैंक्स तो सब जगह छाए हुए हैं ना, या बैंक्स का आपस में वो भी होता है। तो इंडिया से कोई आदमी है जिसको यूएस वाले को पैसा पे करना है और अभी पैसा नहीं है, तो वो क्या करता है, इनसे क्रेडिट फैसिलिटी ले लेता है, लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, सुना होगा आपने। पंजाब नेशनल बैंक का जो स्कैम है उसके कॉन्टेक्स्ट में जरूर सुना होगा आपने, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो वो लेटर ऑफ क्रेडिट खुलवा लेते हैं और कि हम हमारे बिहाफ पे ये गारंटी लेते हैं कि वो पेमेंट कर देंगे आपको। ये जो बिजनेस से ही रिलेटेड क्रेडिट फैसिलिटीज वगैरह है उनकी बात हो रही है, कैपिटल अकाउंट वाला नहीं। बात क्लियर हो गई आपको?
ये जो क्रेडिट फैसिलिटीज टर्म्स यूज हो रही हैं वो शॉर्ट टर्म बैंकिंग क्रेडिट फैसिलिटीज हैं, जो कि बिजनेस से रिलेटेड है, ट्रेडिंग से रिलेटेड वाला है, इसको अलग अदरवाइज मत समझ लीजिएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, ऐसे पेमेंट जो कि इंटरेस्ट के नेचर के हों, लोन्स पर जो इंटरेस्ट जा रहा है, नेट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड वगैरह है, इस तरह का जो नेचर है, एब्सोल्युटली यही तो करंट अकाउंट होता है। पेमेंट ऑफ मॉडरेट अमाउंट ऑफ अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन हो, या फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात हो। चलो समझा देते हैं, अपने आप नहीं पढ़ पाओ, समझ चला जाएगा तुम्हारा बिना मतलब, लो समझा देते हैं। अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन्स, और इस बहुत आसानी से समझ जाओगे। देखो किसी से मतलब गाड़ी वाड़ी का ये होम लोन वगैरह लेते हो, तो मान लो 100 रुपए का होम लोन लिए हो, ठीक है, 100 रुपए का होम लोन लिया, उस पर 10 रुपए इंटरेस्ट है। तो जब ईएमआई बनती है, ऐसे ईएमआई जब शुरू होती है पे करने हम लोग, तो ये लोग करता है कि नहीं, कि जो पेमेंट आप कर रहे हो, मान लो टोटल पेमेंट कर रहे हो और इसको इसको 2-2 रुपए में बांट दो, कि 2 रुपया 2 रुपया 2 रुपया और 2 रुपया, 5 भाग में इंटरेस्ट हो गया मान लो, ठीक है, ऐसा समझो, ठीक है। और 100 रुपया भी तो बटेगा, आपको यहू तो रिपे करना है धीरे धीरे भाई, ठीक है, ये भी रिपे करना है, तो यह समझ लो बटेगा उतने ही भाग में। इसको किसी दूसरे कलर से कर देते हैं, 20-5 100, चलो 20 और 20, ठीक है। तो आप जानते होंगे कि ये लोग क्या करता है, जो है चालाकी क्या करता है, कि जो पहले इंस्टॉलमेंट जब जाता है 22 रुपए, तो उसमें पूरा का पूरा जो है वो एक्चुअली प्रिंसिपल ही ये थी, क्या बोलते हैं, अपना जो है पूरा प्रिंसिपल अमाउंट को आउटस्टैंडिंग रखेगा, पूरा का पूरा जो अमाउंट है वो जहां तक हो सकेगा वो इसमें आपसे जो है पहले वो क्या खींच लेगा, इंटरेस्ट ऑफ पहले खींच लेगा। क्यों भाई, आइडियली क्या होना चाहिए कि 20 रुपीज का आप ये ले लीजिए, ध्यान से सुनना हमारी बात को, समझ जाओगे चालाकी। 20 रुपीज हमारा इसमें से काट लीजिए, और 2 रुपया जो इंटरेस्ट का है वो काट लीजिए, तो अगले साल के ईएमआई में कितना रुपया बचेगा, 80 रुपया। 80 रुपए पे फिर इंटरेस्ट कम हो जाएगा ना, समझो बात को। अगर 100 रुपया आउटस्टैंडिंग रहा बहुत समय तक, तो उस पर ज्यादा इंटरेस्ट बनेगा, लेकिन हर बार कम होता जाए, आज फिर 60 हो जाए, फिर 40 हो जाए, तो इंटरेस्ट कम होता जाएगा ना आगे चल के। लेकिन ये लोग इसीलिए क्या करता है, पहले का जितना भी अमाउंट है उसमें ज्यादा से ज्यादा आउटस्टैंडिंग रहे, एक ये लॉजिक है। और दूसरा लॉजिक यह है कि भाई, जिसे कहते हैं कि जो है मूलधन से ज्यादा प्यारा सूद होता है, तो एनपीए नहीं हो जाए हमारा, इसलिए पहले इंटरेस्ट जो है फट से इंटरेस्ट पहले निकाल लो भाई फटाफट। तो समझ गए ना आप, रिड्यूसिंग या फ्लोटिंग मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इसी पर होते हैं रेट के हिसाब, हम उसको उसमें कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जा रहे। अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन का मतलब ये होता है कि लोन का खुद का पेमेंट और उसका इंटरेस्ट जो है वो इकट्ठा ही 100 रुपया ना होके, इकट्ठा ही 100 रुपया नहीं होगा इतने साल के बाद, कि 5 साल के बाद हम आपसे 100 रुपया वापस ले लें, नहीं। अगर वो है तो वो कहां जाएगा, अगर 5 साल बाद आज 100 रुपया मैंने लोन लिया है, 5 साल बाद उसे वापस करना है, अगर ऐसा है तो वो किस अकाउंट में जाएगा, वो तो हमने बताया था ना, हाँ कैपिटल अकाउंट में जाएगा ना। वंस इन अ व्हाइल, कभी कभार आया हमारा पैसा नहीं है वापस कर देना, कभी कभार वाला, दो फैक्टर होते हैं ना, आपको ध्यान होगा। लेकिन अगर उसको हम रेगुलर टाइप के उसमें अगर पे करेंगे, तो कुछ हद तक वो करेंट अकाउंट के कैरेक्टर का हो जाता है, ठीक है, करंट अकाउंट के कैरेक्टर का। तो अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन के हिसाब से अगर कोई चीज पे की जा रही है, तो वो करंट अकाउंट का हिस्सा बन जाता है, समझ गए। अगर इकट्ठा पे किए तो कैपिटल अकाउंट, अमोर्टाइज करवा दिए तो करंट अकाउंट, समझते जाओ सब बढ़िया बढ़िया चीज, ठीक है। अब दूसरा चीज क्या बोले थे हम, डिप्रिसिएशन था, क्या था रे, डिप्रिसिएशन ऑफ डायरेक्ट, हाँ इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। इसका क्या एग्जांपल दे दूंगा आपको, अच्छा चलो, बहुत आसान आसान कॉन्सेप्ट है। इंडिया ये है मान लीजिए, और यूएस है। इंडिया के एक व्यक्ति ने यहाँ की एक कंपनी में, चलो कंपनी का एग्जांपल ले लेते हैं, एक इन्वेस्टमेंट किया हुआ, कितना रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, 100 रुपए का। हम तो अपने औकात के हिसाब से ही एग्जांपल देते हैं भाई, आप लोग नोटिस कर लिए होंगे, हमारा 1000 लाख वाख लिखने में एकदम ये हालत खराब हो जाता है। तो ठीक है, 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और यूएस की अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी ऐसी है। यूएस के लिए क्या हुआ, अगर मैं कहूं कि इसने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इंडियन ने यूनाइटेड स्टेट्स में एक कंपनी के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, हाँ बिल्कुल सही, शाबाश शाबाश। तो एफडीआई हुआ, एफडीआई क्या हुआ है। अब मान लो यूएस की एफडीआई पॉलिसी ऐसी है कि वो कहती है कि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आपका इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में है वो 100 रुपीज से कम नहीं होना चाहिए। अरे तभी तो हम 100 रुपीज लगाए थे भाई, सही बात है। लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट हमने किया था,
वो मान लो किसी कारण से डेप्रिशिएट हो गया, लॉस हो गए, ये हो गया, वो हो गया, डेप्रिशिएट की वैल्यू कम होती गई, ऐसा माहौल बदला कि वैल्यू कम होती गई, तो ये कुछ समय बाद 50 रुपया रह गया, पता चला। समझो हमारी बात को, बहुत आसान तरीके समझा रहे हैं, इससे आसान मुझे एग्जांपल आता नहीं। तो भाई कुछ समय बाद इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मान लो 50 रुपया रह गई, लेकिन यूएस की पॉलिसी है ना, ही तो नहीं तो आपका बिजनेस आपको बाहर खदेड़ देगा ना भाई। कि हम आपसे कहे थे कि कम से कम, जैसे वो बैंक वाला नहीं करता है कि इस पर्टिकुलर अकाउंट में मिनिमम इतना बैलेंस रखना जरूरी है। कई बार सुना होगा आपने कि मिनिमम बैलेंस आपका भाई इतना होना चाहिए इस बैंक अकाउंट में, 500 रुपया सेविंग्स में या जितना भी होता है। तो ये तो इसकी पॉलिसी थी भाई यूएस की, उस उतने से नीचे जाने नहीं देगा आपको। जैसे ही आपका यहाँ वैल्यू डिप्रिशिएट करके 50, आपको तुरंत नोटिस आ जाएगा कि भाई सुनिए, आप इसको 100 मेंटेन करिए, यही हमारी पॉलिसी है। तो इस 100 को मेंटेन करने के लिए यहां से 50 रुपया और एक्स्ट्रा दोगे कि नहीं दोगे? समझे? ये जो 50 रुपया एक्स्ट्रा है वही इस लाइन में लिखा है, डेप्रिसिएशन ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारा डेप्रिशिएट हो गया है, उसको भरपाई करने के लिए कि किसी तरह वहां बने रहें, उसके लिए अगर कोई पैसा देते हैं, उस वाले की बात हो रही है। समझे? नया बिजनेस सेटअप करने के लिए एफडीआई करेंगे तो वो क्या हुआ, कौन से अकाउंट में जाएगा? जब पहली बार 100 रुपया लगाए थे एफडीआई में, तब कौन से अकाउंट में जाएगा? बिजनेस को सेटअप करने के लिए, बिजनेस को सेटअप करने के लिए जो पैसा दिए किस अकाउंट में जाएगा, किस अकाउंट के थ्रू जाएगा? कोई शक, कोई होना भी नहीं चाहिए संदेह, सिंपल सी बात, हम लोग यही तो सीखे हैं। बिजनेस को चलाने के लिए ये जो पैसा दिया जा रहा है, किसके लिए दिया जा रहा है? ताकि बिजनेस किसी तरह चलता रहे भैया, नहीं तो बाहर कर देगा। तो यही तो हमने सीखा है नहीं, कि बिजनेस को सेटअप करने के लिए जो चीजें होती है वो कैपिटल नेचर की होती हैं, और जो उसको चलाने के लिए रोजमर्रा की चीजें हैं, अधिक फ्रीक्वेंटली होती है, वही रेवेन्यू होती है नेचर में। तो आप जानते ही हैं, इस प्रकार से इसको समझा जा सकता है। बहुत एक्यूरेट डेफिनेशन में मत जाइए, लेकिन समझ जाइए। और जो रेमिटेंसेज आते हैं फैमिली वगैरह के लिए, जो है लिविंग एक्सपेंसेस वगैरह के लिए, वो सब करंट अकाउंट के होते हैं। इन सब के लिए फ्रीली करंट अकाउंट कन्वर्टेबल है, कहीं कोई सोचने की बात नहीं है। तो इंडिया में करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी इज नॉट एन इशू एट ऑल। व्हाट आई वांट टू से, करंट अकाउंट इज फ्रीली कन्वर्टेबल इन दिस कंट्री। द प्रॉब्लम और द चैलेंज इज विद कैपिटल अकाउंट। यही एक चीज और पढ़ लीजिए, फिर खत्म करते हैं लेक्चर को। ये कैपिटल अकाउंट की कन्वर्टिबिलिटी को लेकर सवाल उठते रहते हैं, ठीक है। Unlike the current account, however, a surplus in the capital account may not necessarily imply increased ownership of funds. सही बात है कि नहीं? करंट अकाउंट में अगर कोई सरप्लस आ जाए तो हम कह सकते हैं कि दिस इज अवर प्रॉफिट, क्योंकि ये हमारा है, हमसे कोई नहीं ले जा सकता। लेकिन क्या वही बात कैपिटल अकाउंट के सरप्लस के लिए कह सकते हैं आप? नहीं कह सकते। सबसे ज्यादा श्योर तरीका कौन सा है कैपिटल अकाउंट के? हमारा है, उसमें भी हमारा है नहीं, हमारा भी है, या ऐसा कह लीजिए कि कम से कम एकदम से हमारा जो है वो हमको जुदा नहीं कर दिया जाएगा, वो एफडीआई है कि नहीं है? बाकी सब तो ऐसे ही है, जब जाएगा पैसा अपना वापस ले लेगा, एक दिन जाना है, उस पैसे को वापस चला जाना है। तो कैपिटल अकाउंट का सरप्लस कभी भी हमारी ओनरशिप नहीं है, दैट इज नॉट अवर प्रॉफिट एक्चुअली, इफ यू सी। इसीलिए जो है इसमें थोड़ा सा संभाल के किया जाता है। फिर भी क्या बेनिफिट्स हो जाएंगे बताओ? अगर कैपिटल अकाउंट की कन्वर्टिबिलिटी को सोचा जाए तो क्या क्या बेनिफिट होंगे? पहली बात तो ये बेनिफिट तुरंत हो जाएगा कि जो डोमेस्टिक हमारी सेविंग, याद आया सबको? एक चित्र बनाए थे हम, इसमें सोचे थे कि दिखाएंगे आपको, समझाएंगे कि फिर से याद आ जाए। हाँ, ये वाला चित्र याद आया कि अगर सेविंग्स की बात की जाए किसी भी कंट्री में, किसी भी इकोनॉमी में, तो एक तो वहां के हाउस होल्ड्स बेचारे जो हमारे आपके जैसे लोग हैं, उनके द्वारा बचाया गया पैसा गुल्लक वाला, या फिर जो कॉर्पोरेट्स हैं उन्होंने जो प्रॉफिट कमाया और सेविंग की वो हो गया। तीसरी चीज है कि अगर भाई गवर्नमेंट आपकी जबरदस्त काम कर रही है ना, फिस्कल सरप्लस या बजट सरप्लस। अभी तक तो हम डेफिसिट की बात करते रहे, क्योंकि आप जानते हैं डेफिसिट ही होता है जनरली। लेकिन अगर सरकार खूब अच्छे से काम कर रही हो और वो सरप्लस में आ जाए, तो गवर्नमेंट का सेविंग, 3 सोर्स हो गए सेविंग के कि नहीं हो गए? डोमेस्टिक सेविंग के, हाउस होल्ड सेविंग, कंपनीज का सेविंग जो बिजनेस कर रहे हैं उनका सेविंग, घरेलू लोगों की सेविंग, उद्योगपतियों की सेविंग और सरकार की सेविंग। यही 3 तो सेविंग करेंगे, हो गया काम खत्म, बहुत आसान शब्दों में, ठीक। तो ये एग्रीगेट सेविंग हो गई हमारे कंट्री की, ठीक है, एग्रीगेट डोमेस्टिक सेविंग। इसमें अगर कुछ रास्ता ऐसा खुल जाए
कि बाहर से भी पैसा कोई लगा सके हमारे बिजनेस में, हमारी इकोनॉमी में डाल सके, तो वो क्या हो जाएगा, टोटल सेविंग्स ऑफ द कंट्री। तो आज ओपन इकोनॉमी के जमाने में क्या हम कह सकते हैं, ये बहुत छोटा हो गया तो मैं बड़ा करके दिखा देता हूं ताकि समझ जाओ। हाँ, आप देखो और बताओ कि समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। ओपन इकोनॉमी के युग में प्राइवेट सेविंग, यानी प्राइवेट में ये दोनों आ गए, इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट दोनों आ गए, हाउस होल्ड कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट सेविंग और फॉरेन सेविंग भी उपलब्ध हो जाती है। ग्लोबलाइजेशन का यही तो मतलब है ओपन होने का, ओपन इकोनॉमी का। तो फॉरेन सेविंग भी हमारे, तो एग्रीगेट सेविंग क्या होती है, इन्हीं 1 2 3 और 4 का जोड़, यही हो जाती है। ये जो पैसा आ रहा है दोस्तों, ये जो पॉइंट है, ये मैं यहां पर आपका अटेंशन चाहता हूं भाई, ये जो पॉइंट है, ये जो डॉलर चलता चला आ रहा है, अगर मैं कहूं कि ये फॉरेन सेविंग्स है जो यहां इन्वेस्ट होने के लिए आ रही है, तो ये कौन से अकाउंट की बात कर रहा हूं मैं, कोई शक ही नहीं होना चाहिए, कोई संदेह नहीं होना चाहिए किसी को। हाँ, यस, कैपिटल अकाउंट की बात, हमें इसकी तो हम बात ही नहीं, तो सेविंग्स की बात हो रही है ना, ट्रेड की बात तो हो ही नहीं रही अभी। ये है ट्रेड, तो यहाँ है कि गुड्स का भी आवागमन हो भाई, ये सब भी हो तो ट्रेड, हाँ ठीक है, समझ गए। लेकिन ये जो काम हो रहा है तो कैपिटल अकाउंट ही है ना, हाँ ये कैपिटल अकाउंट है। तो अब इस पर्सपेक्टिव को आप अच्छे से समझ गए, इसी के कन्वर्टिबिलिटी की बात हो रही है। ये जो हम पढ़ रहे हैं इसी के फुल्ली कन्वर्टेबल कर दिया जाए क्या, कोई जब चाहे तब पैसा लगावे, जैसा चाहे तैसा चलावे, ऐसा कर दिया जाए क्या, ऐसा करने के क्या फायदे हैं क्या नुकसान है। तो फायदा हम देख रहे हैं कि भाई जो हमारे डोमेस्टिक सोर्सेज हैं उनको सप्लीमेंट करने के लिए फॉरेन सेविंग्स भी आ जाएंगी, ये बात सही है। लिखो यस वस तब आगे बढ़े, फिर पता चला हम बताते चले जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। क्या ये बात क्लियर है, सबको एक्सेप्टेबल है। हाँ भाई सही बात है कि डोमेस्टिक सेविंग्स को सप्लीमेंट करने के लिए फॉरेन सेविंग्स भी अवेलेबल हो जाएंगी, एक फायदा तो यह है भाई ओपन कर देने का। दूसरा कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट जो हैं, अभी हम तुम चाहें तो कहाँ का शेयर खरीद लेंगे, मान लो यहाँ का इंडिया का शेयर खरीद लेंगे कंपनी का, मान लो बाहर के कंपनी का भी हमको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो तभी तो कर पाएंगे। जब कैपिटल अकाउंट वाला रूट ओपन होगा तभी तो अपना रुपया वहां डॉलर में कन्वर्ट करके भेजेंगे कि हमारा पैसा लगा दो, तभी तो होगा। इंडियंस जो है वो कब एनकरेज होंगे कि फॉरेन में भी सारे एसेट्स जो है वो खरीदे जाएं, इंटरनेशनल एसेट्स और सिक्योरिटीज, इक्विटी शेयर बाकी कंपनियों के भी हम भी खरीद सकें। ये कब हो सकता है, जब कैपिटल अकाउंट का द्वार खुलेगा तब हो सकता है बस, ठीक है। और दूसरे देशों के फाइनेंशियल सिस्टम में जो है वो ग्लोबल कंपटीशन, अगर ग्लोबल कंपटीशन, जब इंडिया का मान लो मनी मार्केट है, ध्यान से सोचो, इंडिया में क्लोज इकोनॉमी है, इंडिया में अपना कंपटीशन जो है वो डोमेस्टिक ही है बस, बाकी किसी से कंपीट करने को है ही नहीं। अगर ओपन इकोनॉमी कर दीजिएगा तो जितने भी सेक्टर्स रिलेटेड हैं, इस मनी सप्लाई से जितने भी सेक्टर रिलेटेड हैं, फॉरेक्स से जितने भी सेक्टर्स रिलेटेड हैं, वो सब कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे कि नहीं, आपको वहां से कंपीट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। अगर मान लो कोई रुपी मार्केट इंडिया में डेवलप हो रहा है, रुपी और डॉलर का आपस का मार्केट है, मान लो इसे ऑनशोर मार्केट कहते हैं, ठीक है, ऑनशोर करेंसी मार्केट जो उसी देश में हो, यानी हम हिंदुस्तानी हैं तो रुपए का जो मार्केट यहां डेवलप होगा, रुपए की खरीद बेच, रुपए की खरीद बेच, समझे, रुपए की खरीद बेच एज ए कमोडिटी, कंफ्यूज मत होना, रुपए की खरीद बेच का जो मार्केट होगा वो क्या कहलाएगा, ऑनशोर मार्केट। मान लो यही मार्केट जो है वो कोई और देश हो, वहां पर भी डेवलप हो, ऑफशोर करेंसी मार्केट उसको बोलेंगे। रुपए का ही मार्केट है लेकिन उस देश में नहीं है जिस देश की वो करेंसी है, बाहर कहीं डेवलप हो रहा है। तो जब तक हमारा करेंसी कॉम्पिटिटिव नहीं होगा, हमारा सिस्टम्स कॉम्पिटिटिव नहीं होंगे, तब तक हम उनसे मुकाबला नहीं कर पाएंगे, वो लोग अपना निपटा सल्टा देगा बाहर और हमारा हालत खराब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो ओपन इकोनॉमी है ना, वो लोग अगर ज्यादा कॉम्पिटिटिव है तो वो कंट्रोल करेगा सिचुएशन को, वो उनके एक्शंस, उनके डिसीजंस डिसाइड करने लगेंगे चीजों को, हम पीछे रह जाएंगे इनएफिशिएंसी में। समझे मेरी बात को। तो कॉम्पिटिटिवनेस आती है इससे, अगर ओपन इकोनॉमी हो तो उससे कॉम्पिटिटिव बनता है, हमारा डोमेस्टिक मार्केट भी ग्लोबल कॉम्पिटिशन के तहत कॉम्पिटिटिव हो जाता है। बताएंगे ये कैसे काम करता है, ये भी बता दूंगा अगली क्लास में, चिंता ना करो। फिर फ्रीडम टू कन्वर्ट लोकल फाइनेंशियल एसेट इनटू फॉरेन, सिंपल है। अगर करेंसी पर आपका अख्तियार है तो आपने कोई यहां फाइनेंशियल एसेट खरीदा हुआ है पर्टिकुलर, उसको आप किसी दूसरे फॉरेन के फाइनेंशियल एसेट में एक्सचेंज करना चाहते हैं तो कर ले जाएंगे कि हमको ये बेच के वो लेना है, वो तो फट से हो जाएगा क्योंकि करेंसी जो है फ्रीली कन्वर्टेबल है, आपके एसेट्स इंटरचेंजेबल हो जाएंगे। फिर फ्री एक्सचेंज ऑफ करेंसी एट लोअर, बिल्कुल सही बात है, कॉम्पिटिटिव हो जाएगी,
रेट्स जो है वो कॉम्पिटेटिव हो जाएंगे, मार्केट रेट को डिटरमिन करेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? मार्केट विल डिटरमिन द रेट एंड नॉट द कंट्री और द गवर्नमेंट। तो जो एक्सचेंज रेट है, करेंसी का रेट है, वो अपने आप, मैंने कहा था आपसे, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई क्या है कि अगर इंटीग्रेट कर दीजिए मार्केट को पूरे को, तो अपने आप एक सही पॉइंट पे आके वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा सही प्राइस पे, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से। ठीक, फिर कैपिटल की मोबिलिटी है वो अनरेस्ट्रिक्टेड हो जाएगी, जो कि एक अच्छी बात भी है और दुधारी तलवार भी है। अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि अनरेस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी, कि आया भी और गया भी, दोनों पे कंट्रोल नहीं है। समझ गए बात? अब तो समझ ही गए होंगे। डेवलपमेंट ऑफ ऑन शोर रुपी मार्केट, बिल्कुल हमारा जो ऑन शोर रुपी मार्केट है वो अच्छे से फिर अच्छे से डेवलप होगा, अच्छे से जो है वो रिफाइंड होगा, ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनेगा। ओपनिंग अप ऑफ मोर इंडस्ट्रियल सेक्टर, सही बात है। अभी तो अगर आप रेस्ट्रिक्शन लगाए हुए हैं कि आप इसमें एफडीआई कर सकते हैं और इसमें नहीं कर सकते हैं, यही तो है। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी तो बात हो रही है, पीछे उसके पर्दे के पीछे वही है। आप चाहे जितना न्यूज पढ़ते रहिए, इसमें इतने परसेंट एफआईआई अलाउ किया गया, इसमें इतने परसेंट से ज्यादा एफडीआई नहीं अलाउड, ये सब क्या बात हो रही है? कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी की ही बात हो रही है सब घूम घुमा के। अब आप समझ जाएंगे कि ये क्या कहा जा रहा है। तो ये तो नुकसान है उसके, ये फायदे हुए। लेकिन लोगों ने कहा तो क्या मतलब, इतना फायदा है तो कर दिया जाए क्या? बोला नहीं, जिस तरह के हालात हैं इंडिया में, जिस तरह का हमारा बर्डन ऑफ एक्सपीरियंस रहा है, उसके आधार पर कुछ सावधानी पहले कर लो, पहले तैयारी कर लो, पहले अखाड़े में अपने आप को तैयार कर लो, उसके बाद जाओ जहां जिस दंगल में पार्टिसिपेट करना है जाओ, लेकिन पहले अखाड़े में मेहनत करो भाई, अपना तैयारी करो। समझ गए बात को? तो कहा गया कि पहले अपना डोमेस्टिक जो सब करेक्ट करो, ताकि कैपिटल की फ्लाइट हो भी तो हमें बुरी तरह से हर्ट न करे। समझे कि नहीं समझे? यानी किसी से इतना दिल मत लगा लीजिए कि अगर वो छोड़ के चला जाए तो जो है नहर में कूदने और कुआं में कूदने की नौबत आ जाए। ऐसा नहीं, 2-4 दोस्त लफाड़ी भी जो है अपने रखिए अपने अगल बगल। समझ सकते हैं, कुछ लोग सब आइडेंटिफाई एसोसिएट कर ले जाएंगे इस चीज से। 2-4 लफाड़ी भी होने चाहिए अपने साथ में, जो आपका मजाक उड़ा सके कि ये देखो देखो आशिकी में बौराया हुआ। ठीक है, तो अब वो आपको धरातल पर बनाए रखते हैं कि कोई चला भी जाए छोड़ के तो कम से कम देयर आर सम शोल्डर्स टू फॉल बैक अपॉन। ये सब लाइफ की फिलोसफीज हैं। उसी प्रकार आप पहले अपना डिसिप्लिन, जो डोमेस्टिक जो डिसिप्लिन है वो सही रखिए। 2% ऑफ द जीडीपी फिजिकल डेफिसिट अगर इतना कर ले जाइए तो आप ये रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, फिर एक कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड बनाइए। गवर्नमेंट के जो डेट्स हैं उनके लिए सिंकिंग फंड। ये सिंकिंग फंड क्या होता है? सिंकिंग फंड का ये अर्थ हुआ कि हम जानते हैं कि आज से 5 साल बाद, वही जैसे अमोर्टाइज वाला नहीं बता रहे थे, अमोर्टाइजेशन वाला, वैसे कि जब हम जानते हैं कि 5 साल बाद, जैसे वीणा ने सवाल पूछा था, बहुत अच्छा एग्जांपल याद आ गया कि इस बार सरकार को 256 बिलियन डॉलर, नहीं ऐसे कुछ था, डॉलर का जो है वो कर्जा देना पड़ेगा। तो ये तो 40% फॉरेक्स तो ऐसे ही निकल जाएगा। यही बात हो रही थी ना, 40-43% जितना भी है उतना निकल जाएगा। तो अगर आपको मालूम है कि आपको 250 बिलियन डॉलर का जो है पेमेंट करना है 5 साल बाद, तो उस समय का वेट क्यों कर रहे हैं? अभी से एक फंड क्रिएट कर दीजिए, छोटा सा गुल्लक, एक गुल्लक कर दीजिए, उसमें हर साल कंट्रीब्यूशन डालते जाइए डालते जाइए डालते जाइए। 5 साल तक कुछ तो पैसा इकट्ठा हो जाएगा, 256 नहीं तो 100 ही सही। तो कम से कम उस समय जो इमीडिएट बर्डन है वो सिर्फ 156 का पड़ेगा, कम से कम इतना तो आ जाएगा इससे। समझ गए? इसको सिंकिंग फंड कहा जाता है। तो ये क्यों कहा जा रहा है? ये तैयारी करने के लिए क्यों सलाह दी जा रही है, बताओ जरा। समझ गए ना कि कैपिटल अकाउंट का बात हो रहा है ना, एकदम से पैसा चुकाना पड़ेगा उस समय। आपने जो बोरोविंग ली है उसको एकदम से चुकाना पड़ेगा। अगर आप फ्रीली कन्वर्टेबल कर देंगे सबको तो हालत उस समय खराब हो जाएगा ना। तो इसलिए अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, एक बार में ही देना पड़ेगा। गॉट इट? अगली चीज क्या है, क्या तैयारी होनी चाहिए? तो गवर्नमेंट शुड फिक्स द एनुअल इन्फ्लेशन। हाँ, इन्फ्लेशन भी अपना कंट्रोल में रखिए ऑब्वियसली। तो 2% फिजिकल डेफिसिट, 4% के आसपास इन्फ्लेशन हो भैया, तब आप हिम्मत कीजिएगा। ठीक है, और मॉनेटरी वेपन्स को अलाउ करिए, आरबीआई अच्छे से इंटरवीन करके स्टेबिलिटी को बनाए रखे भाई। फिर अपना खुद का फाइनेंशियल सेक्टर तो स्ट्रेंथन कीजिए भाई। ये कैपिटल कहां आएगी बताओ? कैपिटल जब आएगी बाहर से तो मनी सप्लाई का हिस्सा बनेगी कि नहीं बनेगी? मनी सप्लाई का हिस्सा बनेगी। तो मनी सप्लाई के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो सब स्ट्रांग होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? बाहर से कि कभी भी इंजेक्ट किया निकल गया, इंजेक्ट किया निकल गया, यही होगा ना भाई। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी करेंगे तो जो इंजेक्शन और जो इजेक्शन है दोनों में आपका बहुत ज्यादा वो नहीं रहेगा। तो ये लोग कहीं उसकी चपेट में ना आ जाए ना भाई।
तो इतना स्ट्रांग तो होना चाहिए, इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि उसके चपेट में ना आ जाए इस फ्लक्चुएशन से, आप एकदम से सीवियरली कहीं अफेक्टेड ना हो जाए। तो आपके बैंक्स जो है स्ट्रांग होने चाहिए, यानी उनका एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वो कम हो, ठीक है। सीआरआर जो है वो कम करिए ताकि आपके बैंक के पास पैसा रहे, क्रेडिट क्रिएशन के लिए लिक्विडिटी उनकी बनी रहे। जब इतनी तैयारी हो जाए भैया, जब इतनी तैयारी हो जाए तब तुम मेरे पास आना प्रिय वो वाली बात है, ठीक है, समझ गए ना। तो जब ये हो जाए तब फिजिकल डेफिसिट ठीक हो जाए, आपका सिंकिंग फंड आपके पास हो, इन्फ्लेशन आपका कंट्रोल में हो, आपका बैंकिंग सेक्टर और मॉनिटरी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो अच्छे हो, तब आप हमारे पास आइएगा। तब कैपिटल अकाउंट को फ्रीली कन्वर्टेबल कर देना ठीक है। किसने बोला ये, किसको जरूरत पड़ी है कहने की, कमेटी बनानी पड़ी कि भाई क्या करें, इतना जो है सभी इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, फिर क्या कैपिटल अकाउंट को फ्री कर दिया जाए। तो एसएस तारापुर, सुने होंगे नाम जरूर कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स में, की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी उन्होंने ही ये सारी बातें बताई कि भाई ये तैयारी कर लीजिए तो आपको अच्छा रहेगा, वरना आपको दिक्कत आएगी। लास्ट 5 minutes ऑफ द क्लास प्लीज, you will have to excuse me, I cannot leave it in between like this, okay। तो ये कॉशन जो इतनी सावधानी की बात की जा रही है, क्या वो जस्टिफाइड है? जी हाँ, आप भी एग्री करेंगे कि यस ये जस्टिफाइड है, क्योंकि भाई हमारा हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है, हमारी जो लिक्विडिटी इश्यूज रहे हैं, हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जो रही है 1991 से पहले वाली, सबसे लेसन लिए हैं ना हमने हमने सबसे सबक सीखे हैं। तो इसीलिए फूंक फूंक कर कदम हम रख रहे हैं, दैट इज वाई। क्योंकि कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी से क्या आता है, सबसे पहली चीज क्या आती है, दिक्कत, चुनौती कह लीजिए, दिक्कत ना कहिए तो चुनौती कह लीजिए, हाई वोलेटिलिटी, स्पेक्युलेटिव टेंडेंसीज आएंगी लोगों में, स्पेकुलेट करेंगे लोग, ठीक है, उससे बचना है अपने आप को। फिर इन्फ्लेशन का रिस्क, बिल्कुल, मनी सप्लाई अभी हमने देखा, फॉरेन डेट का जो बर्डन है वो हवा, ये भी तो समझो, कोई भी करेंसी रुपए में और रुपया किसी भी करेंसी में अगर किसी भी रूप में बदलने को तैयार हो जाए कि जब चाहो तो रुपया इधर, डॉलर उधर, रुपया उधर, दिरहम उधर, ये फलाना, तो हवाला ट्रांजैक्शन को खुली छूट मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? हवाला ट्रांजैक्शन समझते हो क्या होता है हवाला? सब लोगों को क्लियर है हवाला? तो हवाला बता के ही खत्म करते हैं, समझ लो हवाला। मान लो ये कंट्री ए है और ये कंट्री बी है, ठीक है, मिस्टर ए ने जो है, जो इस कंट्री के हैं, और मिस्टर बी इधर के हैं, ठीक है, इन्होंने इनसे कुछ चीज लिया, ठीक है, कोई भी चीज ली, फेवर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और इनको इसको पैसा जो है वो पे करना है, ठीक है, इसको इसको पैसा पे करना है, ब्लैक में पैसा पे करने का की इच्छा है, लेकिन ये पकड़े जाएंगे यहां, तो कैसे ले जाओगे पैसा? ठीक है, सब जगह चेकिंग होती है भाई, सब जगह दिक्कत होती है, तो उसको पकड़ा जाएगा यहाँ पे, बॉर्डर पे जो है मान लो पकड़ जाएगा, तो वो क्या करेगा, वो एक मिस्टर ढूंढेगा सी, सी का अपना कोई होगा यहाँ डी, ठीक है, ये इसको दे देगा रुपया ब्लैक में, ये इतने रुपए भर का डॉलर यहां क्रिएट करा के इनको पे करा देगा, ये आपस में निपट लेगा बाद में, इनका काम ही है, ये बिजनेस है, यही है। सबसे सिंपलेस्ट तरीके से अगर हवाले को समझिए तो ये है कि जो है हमको रुपया वहां न जाकर देना पड़े, हमारा ब्लैक मनी आप किसी दूसरे कंट्री के ब्लैक मनी के रूप में वहां पहुंचवा दीजिए, या तो ब्लैक का ब्लैक कर दीजिए या ब्लैक का व्हाइट कर दीजिए, जैसा चाहिए, उसका अलग अलग रेट होता है हर चीज का, जैसे दिलवाना। अगर यहाँ कैश में लिया है वहां भी कैश में दिलवाना है, वो भी हो सकता है, यहाँ कैश में देना है उसको व्हाइट करवा के दिलवाना है, थोड़ा बहुत कमीशन और ज्यादा ले लेगा ये। गॉट माई पॉइंट? बहुत सिंपल। तो अगर कन्वर्टेबिलिटी को फ्री रखेंगे तब तो ये तो सीधे डायरेक्ट होने लगेगा सब कुछ भाई, तब तो कोई रोक टोक ही नहीं रहेगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई कोई उस पर वही नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं रह जाएगी, कोई चेक पॉइंट्स नहीं रह जाएंगे अच्छे। दैट्स व्हाई इट इज नेसेसरी, उसका डबल चेकिंग जो है वो होना जरूरी है, और डिफिकल्ट टू रेगुलेट हो जाएगा, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ऑब्वियसली रिस्ट्रिक्शन हटा लेंगे तो गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल उस पर, सोवरेन का कोई कंट्रोल नहीं रह जाएगा उस पर, ठीक है। तो इंडिया की कॉशियस अप्रोच क्या रही है, मैंने आपको बताया था, सबसे पहले इनफ्लोज जो है, कहां के इनफ्लोज, करंट अकाउंट के पहले, और फिर धीरे धीरे कैपिटल अकाउंट के भी कुछ इनफ्लोज को रिस्ट्रिक्शन से रिलैक्स किया गया। जैसे कैपिटल अकाउंट का एग्जांपल लिखो तो एफडीआई, एफआईआई, हाँ ये कैपिटल अकाउंट के ही तो है, तो इनको रिलैक्स कर दिया गया, इनफ्लोज को रिलैक्स कर दिया गया कि चलो कम से कम पैसा आ ही रहा है, ठीक है। दूसरा, लिबरलाइजेशन ऑफ
लॉन्ग टर्म कैपिटल कमर्शियल बोरोइंग्स, कि क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है ना, लॉन्ग टर्म है, 20 साल 10 साल 20 साल ऐसे हैं, तो उनका इमीडिएटली पैसा वापस खींच लेके भाग जाने का रिस्क नहीं है। समझे बात को? तो फिर धीरे धीरे इनको भी थोड़ा थोड़ा जो है रिलैक्स किया गया, और अब धीरे धीरे आउटफ्लोज को भी रिलैक्स किया जा रहा है कि अच्छा तुमको यहां से पैसा भेजना है तो देखो, अगर तुम सही आदमी हो, जेन्युइन आदमी हो, तो $25,000 तक चलो भेज लेने देते हैं। अच्छा, इतने डॉलर तक आपको भेज लेने देते हैं। अच्छा, आप यहाँ के आदमी हैं और आप फॉरेन की किसी कंपनी के शेयर्स लेना चाहते हैं, अच्छा तो इतने तक ले सकते हैं। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? आउटफ्लो ऑफ द कैपिटल। अब धीरे धीरे कैपिटल के आउटफ्लो को धीरे धीरे सजगता से, बहुत सावधानी से उसे रिलैक्स किया जा रहा है। I am not here to tell you the exact data. It is your job to do it. That's the only homework I ever give. अब आपको ये देखना है कि 5, कोई पूछ ले 5 ऐसे रिलैक्सेशंस बताइए जो कैपिटल अकाउंट पे इंडिया ने किए हों, और 5 आउटफ्लो पे और 5 इनफ्लो पे। वो आपको जबान पे होना चाहिए भैया। मेंस अगर लिखना है तो वो आपको जबान पे होना चाहिए कि देखिए सबसे पहले तो है ये अलाउ कर दिया गया है, $1,00,000 तक ये कर सकते हैं, $25,000 तक ये लोग कर सकते हैं, कोई भी इंडियन या कोई भी इंडियन इंडिविजुअल या कोई भी लिस्टेड कंपनी बाहर के किसी भी फॉरेन कंपनी का शेयर खरीद सकती है, ऐसा कर सकती है। अंडरस्टैंड माई पॉइंट? तो इस तरह से 5 ये और 5 वो, 3 ये 3 वो, चलो कोई बात कुछ आपको, ताकि ये रहे कि ऐसा नहीं है कि हम एकदम से हालत हमारा खराब है। बाकी ये थोड़ा कंसेप्चुअल चीज है। थर्ड वॉल कंस्ट्रेंट जो है एक थ्योरी है, डॉक्ट्रिन है, इकोनॉमिस्ट है एक लीडिंग, बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई है, वो मैं आपको कल करा दूंगा। ठीक है, अगले क्लास में करा देंगे। इस सेक्टर को खूब अच्छे से समझेंगे, इसमें मास्टरी होनी चाहिए, इसमें अच्छे अच्छों का हिल जाता है कॉन्सेप्ट, इसलिए इसको अच्छे से समझ लेंगे आप तो आप बढ़िया से अखबार पढ़ पाएंगे, डिस्कशंस को समझ पाएंगे, पॉलिसीज में चेंज होंगे, बजट, इकोनॉमिक सर्वे सब समझ में आएगा। ठीक है, तो बाकी का कल करेंगे। गॉड ब्लेस यू, स्टडी वेल, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ and your family. Jai Hind.